नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव बजाज यानी RKB और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, गुड इवनिंग और बाकी सब जो भी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, एवरीथिंग एल्स। प्रदीप जी, the new World Bank report has just come in and that says that India is really and truly on the way to becoming the third largest economy in the world, and that might happen within the next 1.5 years. Not that because India is growing so fast, but also because the world is slowing down. Germany, which is at number 4 at the moment, has really slowed down, as has the rest of Europe. So there's every possibility that the Indian economy might just be number 4 before the end of 2024. Now, so absolutely, I mean, the way all predictions, all the biggest international agencies are all very absolutely bullish where India is concerned, and the entire focus is on the leadership of the country, and Mr. Modi is leaving no stone unturned to show that he has been a great leader, and it's because of his leadership skills that India is taking on new heights. He said the third biggest economy. Shortly he said it's a possibility and we are going to do it. And then continuously international agencies highlighting the very fact that among the worldwide recession, India is the only country that shows some kind of a hope, where things called a pole star, or you can call a guiding light. That's India. Right. Now that at least is, and also in terms of growth, but then in terms of growth that leads us into very uncharted territories. We will talk about that in just a little while. I'll talk about that in just a little while. In terms of actual growth and in terms of per capita income, we are way behind. The per capita income is something new inserted by the Congress, which they themselves never believed when they were in power from 2004 to 2013. Well, they are the opposition. You can't expect them to praise Mr. Modi. And in any event, Mr. Modi does a wonderful job of praising himself. So I think you need somebody at least to pull him down a peg or two. But all the same, now at the moment with us, I tell you what, we'll talk about the economy in just a little bit later. At the moment with us, we have the absolutely fabulous and brilliant Dr. Aditi Govitrikar. Aditi Govitrikar ji, namaskar. Namaskar. How are you? Namaskar. Lovely to see you at last. Really and truly wonderful. Thank you. I think we're meeting after God knows how many years. I didn't have a beard at that time, and I think you had just won the Mrs. World contest. I think we met at that time. That was way back in 2001. That was really and truly wonderful. But Dr. Saab, do tell us. This is amazing. This is absolutely amazing. You did your MS in obstetrics and gynecology from here in Mumbai itself, Grant Medical College. And then you have now, I believe from TISS, you have actually done your Masters in Psychology, and at the moment you are working on another Masters in Psychology from Harvard University. And apart from that, you are doing your shows, you are doing another TV film. Where do you find the time? Where do you find that much of energy? I mean, could you share that with us, please? Thank you so much for the great introduction. I finished my MBBS from Grant Medical College, Yes. and fortunately for me, my Harvard degree also is over now. I got my degree on 25th of May. Congratulations! Congratulations! Wow, Thank you. wonderful, really and truly wonderful. Basically, it's all about time management, and my first love is learning. So I'm constantly learning something. I'm constantly, trying to know more, basically. So that's my endeavor. And besides that, transforming people, empowering people, especially women, that is something that that's my priority. And you've always been a trailblazer. You've always done something new. For a doctor actually to participate first in the Glad Rags model contest and then winning it and then winning the Mrs. World contest, in the US, that was brilliant. I mean, nobody expected. First when we heard about it first, that you won the Mrs. World contest, and people came along and told us that, hey, listen, this is an actual doctor, somebody who's a real MBBS and an MS. People thought that was a joke. I'm not joking. People really thought that couldn't be right. This girl is so beautiful. She walks the ramps so beautifully.
and she's not an airhead. She is really brilliant, amazing. So sometimes at that time, did you ever get the feeling that perhaps you are overqualified for the kind of work you were doing, on the ramp and elsewhere? Actually, a small correction. I've not finished my. I did get admission into MD GYNAE, but I unfortunately couldn't finish it. But yes, I am a qualified doctor because I finished my MBBS, and now, of course, I'm a trained psychologist as well as a counselor. So where basically, no, I never felt like I am overqualified because, frankly, to be a success story, irrespective of the field that you choose, does take a lot of discipline, consistency, some kind of, you have to have that in you. You can't be an airhead and be successful. At least I've not seen anybody who has been that. So all the successful women and men in my industry, they are highly intellectual. They're very smart people, worldly wise, well read. Yes, absolutely. Really, truly, Pradeepji, you would like to Yeah, ask a few questions? Marvelous Mrs. India, marvelous Yes. Mrs. India. You talk about That's the divorce, new one, right? separated widows. You talked about redefining beauty by highlighting power, resilience, and inner beauty of married women. Now you Yes. need to believe in this, and I can see it on your face that you really believe in yourself. You believe your absolute confidence. Now, what kind of things? Can you just elaborate on this entire thing? Yeah, Marvelous. sure, I will. What happened was when I won Mrs. World, at that time, many people told me that, hey, you're taking a big risk. This is a glamour field here. When girls get married, their career is over. I'm talking about 2000, 2001, where people would hide their relationships, forget getting married, but even, just being in a relationship was not something that people, girls especially, came out in the open. And here I was, I'm like, yeah, if I'm married, then why should I hide it? Let me just go ahead. And why would the question that was in my mind was, just because I'm a married woman, why should I not be able to take part in a beauty pageant? Am I not glamorous? Has everything changed just because I got married? So that was my psyche at that time. Now, after 20 years, why did I decide to launch Marvelous Mrs. India? Is because I have judged almost over 500 beauty pageants. And what I see is that today the society is in the society we have a very stereotypical definition of beauty, and that is something that I want to challenge. That is something that I want to change, because beauty is inside out in true sense. So yes, it is a beauty pageant where it will be a very beautiful transformative journey for the participant, wherein whether it is confidence, whether it is communication skills, whether it is assertiveness skills or time management, all those will be taught, plus the frills, so to say, of a beauty pageant, which is how to walk the ramp, how to wear makeup, Yes. what looks good on you. Those aspects also will be incorporated. No, but you brought a sort of revolution when married woman is concerned. You brought a revolution when married. You can enter beauty pageants, you can win, and at the same time you could have children also. It was Bollywood, that married woman, and that's the end of it. That was kind of talk and thought, that process that was on at that particular time. And you Yeah. brought in a kind of revolution, married woman, kids, but yes, she's into everything, she can do it. Do you think really you managed to bring a change where India is concerned, where married woman confidence, uplifting married woman confidence, seeing that yes, marriage is not the end of the road? Do you believe that you created a you changed? I'm going to be not so modest to accepting your point, which is to say that yes, I have played a small role in changing the perception that okay, just because she's married, she cannot be in glamour field anymore. To today, where we see a lot of girls have young babies and they are on screen, and not only that, I mean they are doing international work, international films, and I'm so proud of being part of this transformative journey for married women and glamour field. Right. So, Dr. Govitrikar, do tell us in terms of the entire journey that you've had up till now, what was the greatest difficulty that you encountered? Because we'll talk about your show, Marvelous Mrs. India, after that. But what were the greatest difficulties? What were the stumbling blocks placed in your path that you really had to overcome? Please.
First thing that comes to my mind is the guilty mother complex, because my daughter was just about not even a year old when I went for Mrs. World pageant, and to leave her at that young age for 2 weeks was really heartbreaking, and I don't know how many times I've cried over there because I was missing her so much. Other than that, when I started working, of course, it involved a lot of travel. That again, leaving my small baby girl at home and traveling was something that really felt, like, oh my God, why am I doing this? I should be with her all the time. And then a friend of mine said to me that, look, you will be a better mother if you are content and you're happy yourself. If you kill your dreams and your aspirations, you're going to be a bitter woman, a bitter mother. What's the point then? So, and play a role model for your daughter, where you go out there and you achieve what you want to achieve. And I think my children are hopefully very proud of me. They joke around, they say that, oh, why are you studying right now? Give our exams instead. Because last 4 years I've been studying, in the Harvard University. Yes. Yeah, so But that is amazing. That's really and truly amazing. Really and truly proud of Sir, you. I mean, That's 2001, she's being very modest. Dr. Aditi is being absolutely modest. But when she when she won the competition, when came back to India, there were a lot of surprised people started saying, yes, she was actually a change, actually a revolution. We find very middle-aged women today are not afraid. They think they can do it. They think that they can be young. They think that they can be absolutely beautiful. This confidence came. We believe that it came through you. You are the first kind of the very first. Yes. No, what was the motivation? Did you any kind of leadership or anything that influenced you? Because you need to have some role model in your life that you believe that, yes, I can be like that. What was your role model, Aditi ji? Well, I think I'm a very intrinsically motivated person. I seek inspiration from almost everybody that I meet, frankly. I don't have one person that I look up to and say that this is it for me. It's pretty much everyday incidences with everyday people that, inspire me for different things. So I think at that time, the thing that motivated me was basically the whole question mark, that why am I being asked, or when I decided to get married, that they said that hide it, don't tell anybody that you're getting married. And that didn't sit well with me. I was like, no, this doesn't seem right. Why am I hiding something? And I'm not the kind of person who goes on a rooftop and speaks about my personal life, but I don't hide it either. So I think that was the inspiration to kind of challenge the whole perception, and that's what I'm planning to do now as well. That why can't a divorced woman or a widowed woman or a separated woman participate in a pageant, in a beauty pageant? Why is it, So is this beauty pageant going to be only for divorced, separated women or widowed women? Married women as well. Why are we not letting married women? For everybody. So yes. which means it's going to be an all-inclusive thing. So which is why I was wondering, because knowing you, I thought that this couldn't be right. You wouldn't be leaving out married women out of this. No, not at all. Not at all. So everybody's here, right? So you'll have married women, you'll have widowed women, you'll have divorced women, you'll have separated women. Everybody in this, which is really and truly wonderful. And now let's talk about the film experience. You acted in a large number of movies as well. How was that? What kind of an experience was that? And you're still doing it on a different level, of course. But when you acted in your first film and then you came along and acted in Bollywood as well, what was it like? Could you tell us a bit about it? Sure. So it was a great journey, but frankly, I have to confess that was not something that I focused on. That career was something that, on the side, it happened to me. I would get calls, I would get offers. Sometimes I would say no, sometimes I would say, yeah, let me do it. It sounds very interesting. So I didn't really plan, or really, I did not focus on Bollywood per se, but it's been a great journey. I met some wonderful people. I'm in talks with another film, which hopefully in next 2-3 days it should be announced. Wow. So that I finished shooting for one more film called Glam Girls, which will release, I think, by the end of 24. So yeah, things are happening, which is great. Fantastic, absolutely fantastic. And do tell us a bit about the fact that you became a total vegetarian. Were you a vegetarian right from the beginning, or did you give it up, or did you give up eating meat and stuff?
Well, I have been vegetarian since birth, and I don't force vegetarianism on anybody, but I do believe that vegetarianism is the way forward. We human beings, if you see our teeth or if you see our digestive system, we are more, if you take the not the carnivores, but the vegetarian Yes. animals, it's more similar to them than the carnivores. So I think we're built to eat vegetarian food, but like I said, is that there's no force on anybody, each to his own. Right, but there's a there was this huge Me Too movement which started in the United States, and then after that, a lot of people started coming out over here in India. Did Yeah. you ever experience people coming on to you and hitting on you? Of course, you would have. I mean, Yes. how is it possible not to looking the way you do? But was there something really nasty ever that I'm sure there wouldn't be, considering the kind of confidence that you exude. People would be very, very scared of doing anything like that. But was there ever anything nasty that you could talk about right now, and maybe tell other girls who have just come into the industry as to how they can protect themselves? Well, of course I did. I did face casting couch, but what did not sit well with me, because and I guess it is also because my focus was not Bollywood, so I was ready to walk away from glamour field. I guess that's also because I had the education. Yes. That helps a lot. So my advice to the youngsters who want to come in this field is, make sure that you have something which you can fall back on in case you don't want to do something that you don't want to do. I mean, that is something that every girl out there and every guy out there should imbibe. Yes. Don't fall prey to any false promises or any promises as such which do not make you happy. Right. Ultimately, that's the key word, right? Whatever makes you happy. And all your life, you've done whatever makes you happy, right? Isn't Now, that right? Aditi, the most important thing is, the challenges of life. Now, the challenges of life. Now, we found that married, attending, and then married to a conservative Muslim family. That is more important. And then attending a pageant, winning, coming back, and after that continuously doing things that are absolutely can deem absolute victorious decisions that you have taken in every stages of life, victories, defeats. Now, how do you tell the younger generation, look how I have done it, I have gone through all this and yet succeeded? Depression, how to handle depression, how to handle bad times, and then carry forward, because everybody has a zigzag in their lives, up and downs. How you have handled it, and how you advise the younger youth, this can inspire you. Well, that's a great question. But luckily for me, I mean, the family that I was married in wasn't really conservative, so they were quite supportive of what I was doing. But sometimes things don't work out, and whatever. I don't want to get into the reasons because it feels like a different lifetime today. Uh, However, what is important for everybody to understand is that yes, you have dreams, yes, there is a family, and balance is very, very important. So that's what I say, that if I could do it, if I could go past the obstacles and the hurdles which were thrown in my way by life, anybody can get out of the darkness, because I have seen deep darkness wherein there was no sliver of light anywhere. And I have come out of that, and I think I'm victorious. And one of the things that I want to, share with the participants of Marvelous Mrs. India would be this, that no matter what your obstacle, no matter what your hurdle is, there will be somebody to help you out. You need to reach out. You need to extend that, you need to be vulnerable. So, be it a therapist or a counselor, or be it a family member or a good friend, it's important for us human beings to build that kind of social support, that kind of network where you have a 3 a.m. friend who will be there irrespective of whatever the circumstances. Is that the reason why you've done psychology? Is that the reason why you decided to do your master's in psychology? Is that the reason why? Because you wanted to reach out to people and help people? Is that why? Absolutely, absolutely. So when I was on the crossroads of what to do next, because I wanted to learn, I wanted to go back to studying and intellectually getting stimulated. I said, okay, I know human body. Now let me learn about human mind. And it's extremely intriguing, because why do two people in the same situation behave so differently? So that kind of attracted me to psychology, and only to realize that the more I know, the less I know.
Aditi, you talk about darkest time, dark times and dark times and how you overcame it and how you moved out of it and how you become victorious. Now, this kind of inspiration to many, this could be a kind of inspiration to, if you can still elaborate on that, because we have seen you, you have maintained yourself so well. You're so well read, educated and everything on, and then still talk about dark times and how to handle it. Now this could be a source of inspiration for a lot of young people, a lot of middle-aged people. Your dark time, if you want to elaborate on that, dark times, how you came out of, how you fought it out and how you have succeeded. A little bit of elaboration. There were days when, or rather nights when I haven't slept, I would keep the light on because I would hate to be in darkness. I would count every minute waiting for the sun to rise so I could get up and do things, and many nights like that. So I've spent a lot of sleepless nights. I would cry at a drop of a hat, sometimes not knowing what's happening. I mean, I knew intellectually what was happening, but emotionally I wasn't able to cope. But like you said, that I came out of it, and yeah, I took steps to come out of it. I worked very hard on who I am today. There was a lot of self work that's involved, including Vipassana meditation, which I've been doing for last almost 13 years now. That truly helped me in, and still does, in coping with stress or any negativity that surrounds us. So yeah. Right, that's really truly wonderful, because what happens these days is most people take the easy way out. They just either turn to alcoholism or they turn to drug addiction or stuff like that. That's a major problem which is facing practically most of the glamour industry today, whether it is the fashion industry or it is Bollywood, even the media. In fact, even journalists, by the way, are succumbing to this drug addiction. Would you have a message for them? Would you care to tell these guys that, hey, listen, if you're feeling depressed now, after you've had this, after the feeling wears off, that this depression is going to be as nothing as to what you're going to face at that time? Well, it's a vicious circle and it's a downhill spiral. Yes. Because once you get into the whole escapism, and that's what I call it, it's an easy way out, but it's like putting a band-aid over pus-filled wound. Yeah. It's not going to heal. It's only going to get worse. So if you're using drugs for any of these kind of trauma that you're trying to cope with, then that is not the solution. A lot of people, a lot of youngsters start drugs as a recreational thing, to be cool, to be, to fit in. Therein, I think parents need to really take care, because vaping, smoking up, all these things have become really common. And I have a teenager. He's a boy, and that's my biggest worry as well, because peer pressure is something that it's very difficult to say no at that point. So the communication channel has to be open with your child. I'm talking about kids now and not adults. Yes. Adults are concerned, I think it's best to introspect every day. I think if you introspect for even 10 minutes every day, it gives you a lot of insight into who you are, where you're going, what your life is all about. Because ultimately, life is beautiful. But do you do that? Do you do that every day? Do you do that? Yes, I do. So do you meditate and then you work out what you did the whole day and then work it out in your mind as to what was great, what could have been done differently and stuff like that? Do you do that? All the time. All the time. I think I'm my biggest critic and I'm quite a worrier, so to say. So yes, physical workout is very, very important to me. But mental workout, which is introspection or meditation, also is part of my routine. And unfortunately, my schedule is not wherein I can say 9 to 5, I'm doing this, 6 to 7, I'm going to do this, because every day is very, very different. So what I do is on flights, if I'm in the lounge at that time, I'll just either listen to a podcast or close my eyes and introspect or meditate. So do you have a favorite podcast that you listen to? Say that again. Do you have a favorite podcast that you listen to? Yes, there is a podcast called Grit. It's by Stanford people, and there's another one by Ed Mylett, who interviews all the achievers, mainly in US. So I listen to these two quite regularly. Wonderful. And then there's of course Tom Bilyeu and many others. Are you also a religious person? Do you
Do you pray and stuff like that? Well, I do believe in super consciousness, but I'm not a big believer wherein I will go to a temple every day and do puja every day. But I do go to a temple, I go to a mosque, I go to a church, and I do pray because faith has a very big um role in our life. It really can move mountains. So I am a faith. I mean, I am You know, you faith, but not like in a very religious manner to say that this religion is good and that is bad, and it should be like this. I'm No, not that. you said you, No, you hang said on a you minute, learned just a one lot. second. She learned a Pradeep lot. ji, Yes, yes. one second, one second. You mentioned your 15-year-old son, your teenager son. How do you communicate with him? How do you tell him, hey, listen, it's not cool. Vaping is not cool. Sniffing is not cool. Chasing the dragon is not cool. I don't know whether they still chase the dragon or not. Or maybe there's a new term for it these days. I don't know. So, what do you tell him? How do you get across? Because you just can't tell him, hey, this is not good. Yeah, You that's tell a right. kid it's not good, he's going to do exactly that. Yes, So what do you do? Well, I discuss openly with him the pros and cons. I discuss with him how, when I was younger or his age, what happened, what were the obstacles I faced when I started modeling, what happened, how to cope with peer pressure. So, in a very story format, conversation is what I have. Because giving advice and telling him this is good and this is bad, like you said, he's just going to listen from one ear and take it up from another. So that's not going to work. So it's best to kind of have a very casual attitude, but at the same time not callous. So be serious about it, but in a very casual story kind of format. Great. Pradeep ji. Yeah, and you talked about learning from a lot of people. You said you don't have one particular leader. You learn from a lot of people. Where Yes. a role model in Bollywood is concerned, whom do you think that Yeah, I would like to follow this person. I'd like to learn from him or learn from her. Or you a lot of role models in Bollywood. How do you see it? Oh my God, there are way too many. There are way too many. I think I would start with Amitabh Bachchan ji because he was the host when I was in Big Boss. Um, and I'll tell you the moment when I felt like, oh my God, if anybody can communicate, it is this man, because I had to meet him before we went on the set to do the discussion. When I came out of Big Boss, and the way he paid attention to what I was saying, it was as if there was nobody else that existed around. His focus was on what I was talking, I was Gee. speaking. So he was there in the moment, and you can see that. You can observe it when one watches him on KBC or any of his other programs. That he's there in the moment. I think that's great. The second person that comes to my mind is Akshay Kumar, because he was the host when I did Khatron Ke Khiladi, and the fitness level that that man has, given the schedule and the amount of work that he does, it's incredible. I mean, I remember him telling us a story when we were doing Khatron Ke Khiladi, where he was shooting in Australia and he did not have time to go and work out. He was staying on some 24th floor or something, so he would not take the lift. He would just climb up and down, and I'm like, oh my God, wow, that's the commitment to fitness is something else. And there are so many, right? I mean, I worked with Shah Rukh in Paheli. The way he is when he's producing a film and he's acting in the film, that is something that is really credible. Now, if we take the women, then Kriti Sanon, That was Alia. a lovely film, by the way. Paheli was a beautiful film. Thank you, thank you. Really, And of really, course, truly I lovely. just met Malaika, so I draw a lot of inspiration from Malaika as well, because her fitness level is to another level. So you listed out Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, and Shah Rukh Khan. Yes. Any women that you might have admired? Like I said, Kriti Sanon, I really like her work. I like the way she's super fit and the way she conducts herself. Alia Bhatt, who was taken international scene by storm for film, as well as a big designer that she's endorsing after having a small baby. So that is something that I resonate with a lot. Malaika, who's a dear friend of mine, and her fitness level is, like I said, to another level. So she's Wow, truly really and truly And, lovely. and any immortal dialogues that you remember, like you seem to be very intelligent. Some people are fascinated by Rajesh Khanna's "Bahu Machai Zindagi aur Maut Upar Wale Ki." Something way of life. Anything that inspired you very much? Any filmy dialogue that you can say, you pin it up. Well, I don't remember the film, but I think it's a very cute, it's a very romantic, very flirty kind of a dialogue, which is "You had me at hello."
You had me at hello. Right. Right. Jerry Maguire. Yes. Jerry Maguire. Right. Tom Cruise and Renee Zellweger. Yes. Really and That is truly wonderful film. Well, it's been really and truly wonderful talking to you. Dr. Aditi Govitrikar. A little bit of Mismatch 3. Mismatch 3. You want a little bit of Mismatch 3? Yes, of course. I mean, that was my first tryst with Netflix. Yes. So Mismatched 1, 2, and now they have greenlit Mismatched 3, which is something that I'm looking forward to. But I am looking at doing more OTT work, and that somehow has eluded me so far. But fingers crossed, hopefully that tide will turn soon, and I will be seen on OTT platform as well. Wonderful. Dr. Govitrikar, but before we let you go, any great film that you may have watched recently, say in the last week, 10 days, 1 month, that you would like to share with us? Actually, I saw Rocky Rani recently, and I quite enjoyed it because it was a complete entertainment, and I love these big sets and colorful Ranveer, and it was truly entertaining because at the end of the day, in our own lives, there's just so much of stress and everything happening that it's nice to just step aside and go into this dreamland, fantasy land. So you have 2 children. You talked about your son. Yeah, I have a daughter as well, the elder one. And your daughter is, you need to tell her stories too, or does she tell you stories? She tells me stories. I think she's way mature than I am, and somehow she's always been a mature child. And at times I ask her, what should I do? And the advice she gives, it's like, I'm like, where does this wisdom come from? She's very, very sorted in her, very, very emotional, but extremely sorted where these things are concerned. Really and truly wonderful talking to you. Dr. Govitrikar, really and truly proud of you. I hope you continue what you are doing and can't wait to watch Mrs. Marvelous India. I hope it happens very, very soon. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. And namaskar, and as we say, Vande Mataram. Thank you. Well, that was nice. Whatever she's being very modest, but she created this kind of revolution when she first won it, and then she came back. And you find a lot of middle-aged women, energizing themselves. That's not the end of it. Young women who thought they were middle-aged. Yes. And they suddenly realized they were young. Yes. Oh, yes. Even 50 or 60 is not an age for them anymore. Oh, yes. Women believe that their age starts at 40, 50. They find themselves very beautiful. They're all very, well, I can say, training, exercise karna, yoga karna, go into deep meditation. Talking about yoga, we have a Prime Minister who does yoga very regularly. Yes. Yep, these are some of the people who have transformed lives where women is concerned. Absolutely. And I don't think Aditi Govitrikar has got enough credit for what she has actually managed to achieve. Very frankly, and you're absolutely right, she created a revolution over here in the glamour industry where women who thought that hey, their life was nothing but domesticity actually realized they could fulfill their dreams even now. Aditi Govitrikar presented them with that opportunity, which was absolutely fantastic. And at the moment, to talk about the nation and where we are going from here, as we started with India now becoming the 4th largest economy in the world, probably by the end of 2024, we have from the BJP, Mr. Abhishek Verma. Abhishek ji, namaskar. Abhishek Mishra. Abhishek Mishra ji. Yeah, Abhishek Mishra ji. Namaskar, sir. Namaskar. Sir, तो मतलब 2024 तक भारत जो है वो चौथी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, मतलब चौथे नंबर पे आ जाएंगे हम लोग, लग ऐसा रहा है, बशर्ते के मोदी जी वापस आ जाएं 2024 में। देखिए, मोदी जी वापस आ रहे हैं जनता के आशीर्वाद के कारण, और जो इकोनॉमी हमारी अब 5वें से चौथे और चौथे से तीसरे जो मोदी जी ने कहा है, संकल्प लिया है, वो हमारी सरकार, केंद्र में जो सरकार है और जहां हमारी राज्य सरकारें हैं, उसमें जो एक सुशासन हो रहा है, गुड गवर्नेंस हो रहा है, उसमें जो एक फोकस के साथ काम किया जा रहा है, देश को मद्देनजर रखते हुए जो फैसले लिए जा रहे हैं,
जी। तो उस कारण हम अब 5th से 4th और 4th से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, और मोदी जी को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, और मोदी जी जनता के लिए दिन रात काम करते हुए भारत को एक डेवलप्ड कंट्री, विकसित राष्ट्र, जो उन्होंने लाल किला से कहा, उस ओर वो देश को लेके जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है पिछले 3 के 4 साल में, कि तकरीबन 23 के 24 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं पिछले 4 या 5 साल में, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है, मतलब कहीं नहीं हुआ है, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ है जो भारत में हुआ है। और ये किसकी रिपोर्ट है? ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है साहब। जी जी, ये कोई भारत सरकार की रिपोर्ट नहीं है। तो मतलब ये सब चीज़ें तो ज़बरदस्त है। तो आपको क्या लगता है कि जो जितनी लाभार्थी स्कीम्स हैं, लाभार्थी योजनाएं हैं नरेंद्र मोदी जी की, भारत सरकार की, उसके अलावा जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने खुद व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर के एक एक चीज़ में, जैसे हर नल से जल हो, शौचालय हो हर जगह पर, किसानों की जो बीमा योजना है उसको लेकर के, आयुष्मान भारत हो उसको लेकर के, क्या आपको लगता है कि ये काफ़ी होगा एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जितवाने के लिए? देखिए, देश की जनता भाजपा के साथ मजबूती के साथ खड़ी है, उसका एकमात्र कारण है कि ये राष्ट्र जानता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है वो इंडिया फर्स्ट, भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने के संकल्प लोग को लेके आगे बढ़ रही है, और देश भी चाहता है कि सेंटर में एक मजबूत नेतृत्व हो। और आज देश के सामने माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो जन जन के विश्वास को पूरा कर रहे हैं, जन जन के सपनों को साकार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी वो नेता है जो गांव में बैठा हुआ आदमी को भी उन्होंने बिजली दिलाई, घर में पानी दिलाया, एक गरीब को घर दिलाया, सड़कें दिलाई, उनको आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से दवाइयां दिलाई। आज भारत का गरीब, भारत का किसान, भारत का मजदूर जानता है कि मेरा प्रधानमंत्री मेरे साथ आज मजबूती के साथ है। आज भारत का हर वर्ग, हर तबका, मध्यम वर्ग हो, जो मजदूरी मेहनत कश करते हैं, वो जानता है कि सरकार मेरे लिए काम कर रही है। दिन रात मेरा प्रधानमंत्री बिना छुट्टी लिए 24 घंटे 12 महीने 365 दिन इस देश की जनता के कल्याण के लिए काम कर रहा है, भारत को महाशक्ति और विकसित राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। तो जब ऐसा नेतृत्व होगा, ऐसा नेता होगा, ऐसे एक सरकार होगी, तो जनता स्वयं कहेगी कि यही सरकार आगे बढ़ेगी। उसी आत्मविश्वास को लेते हुए माननीय मोदी जी ने कहा कि 2024 में भी आपके आशीर्वाद से भाजपा सरकार रहेगी और हम इस विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे और देश को विकसित करेंगे और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। अभिषेक मिश्रा जी, मगर इंडिया का घटक दल, चाहे वो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती सैयद हो, उनका कहना है कि राहुल गांधी राहुल गांधी लाल किले से 2024 में इंडिपेंडेंस डे का देश को संबोधित करेंगे। तो इंडिया इज, राहुल गांधी जिस प्रकार से प्यार और मोहब्बत के दुकान पूरे देश में, एक हर गांव, हर गली, हर शहर में हम बनाएंगे प्यार और मोहब्बत के दुकान, राहुल गांधी जी का स्लोगन है। और वो 62% बोले कि 38% वोट है मोदी जी का। हम जो 62% वोट है नॉन मोदी वोट्स, नॉन बीजेपी नॉन मोदी वोट्स को हम इकट्ठा करके हम 2024 जीतेंगे। और उनका कहना है कि देखो हाउ आवर स्टेट इज परफॉर्मिंग। कर्नाटका जो वादा किया था 200 यूनिट फ्री, इंप्लीमेंट कर दिया। हमने जन कल्याण में जो भी काम प्रॉमिस किए हैं उस चीज को पूरा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में वही हर चीज, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आप देखो गैस 500 रुपया, 100 यूनिट फ्री, किसान कर्ज माफ, ओल्ड पेंशन स्कीम, वुमन के लिए पेंशन, फिर फार्मर्स 2000 यूनिट फ्री, 10 किलो राइस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो दे आर डूइंग इट। अभिषेक मिश्रा जी, यू गॉट अ बिग चैलेंज। 62% इज अ थ्रेट। 62% जो एंटी मोदी वोट्स है, अगर वो सब एक साथ आ गए तो आपका सपना, it doesn't seem to be working. मिश्रा जी, देखिए, 3 बातें पहले समझिए। जहां तक आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में ये कहा कि आज मैं बुद्धि से नहीं बोलूंगा। जो व्यक्ति पार्लियामेंट में खड़ा होकर इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण बयान देता है कि मैं आज बुद्धि से नहीं बोलूंगा,
दूसरा बयान था कि जब राहुल गांधी ने बोला कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले तो वो भेड़िया थे और बाद में चींटी बन गए। उन्हें अपने आप को सच बता दिया वो भेड़िया है। वो इस देश की जनता को मूर्ख बना के छल करके सत्ता प्राप्त करके अय्याशी करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में अपने आप को जब भेड़िया कहा तो राहुल गांधी के मुंह से सच नहीं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लिप ऑफ द टंग, फ्रूडियन स्लिप, सच्चाई निकल जाती है। उसने अपना को भेड़िया, राहुल गांधी वो भेड़िया है जो इस देश की जनता को लूटना चाहता है, तंग करना चाहता है, और उनके मुंह से ये स्वयं उन्होंने कहा। दूसरी बात, मोदी जी ने 20-25 करोड़, जो आपने ही शो के शुरुआत में कहा, 20-25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठाया है, ऊपर किया है। यह आंकड़ा 30-32 करोड़ भी है कई जगहों पे। तो आप समझिए देश में 30 करोड़ लोगों को गरीबी से उठाया गया है। वो देश की जनता उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती के साथ उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी है। और ये जो आप कह रहे हो 38% भाजपा का है, बाकी विपक्ष का है, वो जो बाकी विपक्ष है वो पूरी तरह बिखरा हुआ है। उसमें तो वाईएसआरसीपी का भी तो वोट है ना, जगन रेड्डी जी का जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं राज्यसभा में। उसमें बिजू पटनायक जी का भी तो वोट है ना जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें केजरीवाल का भी वोट है जो कांग्रेस के साथ नहीं है। तो ये विपक्षी वोट जो है बटा हुआ है और भाजपा का 38% और 42-45% होने वाला है और इनका बाकी बिखरने वाला है, बटने वाला है। ना इनमें यूनिटी है, ना इनमें विजन है, ना इनमें लीडरशिप है, ना इनके पास कोई एजेंडा है। इनके पास केवल जनता को किसी तरह छलने का एक साजिश कर रहे हैं। जो अब शरद पवार ही देखिए, एनसीपी टूट गई। पहले अपोजिशन बैठक में प्रफुल्ल पटेल बैठे थे, अब वो नहीं है। आप ये देखिए ना, इंडिया अलायंस में ही जो है अलका लांबा कांग्रेस से कहती है कि नहीं, हम नहीं सपोर्ट करते आम आदमी पार्टी को। तो आप इस बात को समझे, इंडिया अलायंस जो है एक घमंडी, जो मोदी जी ने कहा, एक घमंड का अलायंस है जो अपने आप चूर चूर हो जाएगा। लेकिन अभिषेक जी है वो भाजपा के साथ है और इंडिया अलायंस के लीडर ही अपने साथ नहीं। अभिषेक मिश्रा जी, वो सब तो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि पहले भी हम लोगों ने देखा है कि जो भी ऑपोजिशन की अलायंस बनती है वो ज़्यादातर ऐसे ही होता है, उनका आचर यही होता है, आखिर में जाके सारे वोट कट जाते हैं, वोट इकट्ठे नहीं होते हैं। क्योंकि लीडर इकट्ठे आ गए इसका मतलब ये नहीं है कि वोट भी इकट्ठे आ गए, ऐसा नहीं होता है। करेक्ट है बात। लेकिन पिछली मर्तबा आप जो 303 सीट लेकर के आए थे, आपने यूपी में आपकी परफॉर्मेंस, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में आपकी परफॉर्मेंस जबरदस्त थी साहब। मतलब ऐसी परफॉर्मेंस देखी नहीं गई। 80 सीट में कितनी आए आपका? 75 के 76 सीटें लेकर के आए थे आप। राजस्थान में 100%, एक भी सीट नॉन बीजेपी पार्टी के पास नहीं गई राजस्थान में। मध्य प्रदेश का भी तकरीबन वही हाल था। महाराष्ट्र में देख लीजिए, फैबुलस। आपको क्या लगता है कि क्या वो आप रिपीट कर पाएंगे? कर्नाटक देख लीजिए, हाल ही में आप कर्नाटक में हारे हैं बुरी तरह। मतलब आपकी सिर्फ 65 सीटें आई हैं विधानसभा में, और पूरे साउथ में आज की तारीख में दक्कन के दक्षिण में आपका तो सुपड़ा साफ है। वहां मतलब आपकी जो 303 सीटें जो 2019 में आई थी, इस बार वो कहां से आएंगी? अभिषेक मिश्रा जी, देखिए, जब देश मजबूती के साथ किसी नेता के साथ जब होता है तो इस प्रकार जो आप एनालिसिस कर रहे हो कहाँ से सीटें आएगी, हमारा विजन है कि हम जनता को कहेंगे कि हम आपके लिए हैं, हम भारत को मजबूत करने के लिए हैं, भारत को विकसित करने के लिए हैं। और हमें पक्का भरोसा है, तमिलनाडु से लेके श्रीनगर तक पूरे देश में और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमें सीटें मिलेंगी पिछली बार से ज्यादा। महाराष्ट्र में भी ज्यादा, यूपी में भी ज्यादा, राजस्थान में भी पूरी की पूरी वापस आएगी। कर्नाटक में मतलब यूपी में 80 की 80 अगर ज्यादा मिलेगी तो मतलब 80 आउट ऑफ 80। जी जी, उत्तर प्रदेश में 80 का 80 लगभग संभव है, क्योंकि अखिलेश यादव जनता जान चुकी है, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। और भाजपा के जो दो सहयोगी दल है, वहाँ अपना दल जो है, उसके अलावा वहाँ कोई और नहीं है। यूपी में तो 80 तो आ ही रहा है, उसमें तो कोई विचार का विषय नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो वहाँ के आप पूछ लीजिए जनता से, वो खुद कहेंगे कि इस बार एक भी सीट विपक्ष को नहीं मिल रहा। हमें 350, मतलब सोनिया गांधी भी हार जाएंगी रायबरेली। जी जी, 350 सीट जो है जी भाजपा को इस बार तय है। 350, चलिए यस, चलिए 400 से तो नीचे आए। नहीं, in 2014 we got 280, then 2019 303, this time we are going to reach 350 on the development model. I once again repeat,
when the voter will go to vote, he will remember क्या राहुल गांधी डेवलपमेंट देगा, क्या ममता देगी, और क्या अखिलेश यादव देंगे, and then he said नहीं मोदी जी दे रहे हैं, मोदी जी देंगे. अरे डेवलपमेंट मॉडल तो ठीक है अभिषेक मिश्रा जी, you're talking about the development model where you're selling an LPG gas cylinder for 1150 rupees. I mean, come on. Rajasthan, the Congress government is giving it at around 580 rupees. In Karnataka, they are giving it at around 600 rupees. In Chhattisgarh, they are giving it at 550. So, what development model are you talking about? Sir, Bajaj ji, I have a question for you. Please go ahead. Go ahead. Are you suggesting that a voter of India yes does not vote for national security, does not vote for development, does not vote for infrastructure development, does not vote for holistic growth? He only votes on the temporary technical prices of cylinder managed by some PSU companies due to some whatever logistical issues. You are saying the Indian voter only votes on. Well, we have seen that. Sir, we have seen that in Punjab. We have seen that in Delhi. We have seen that in Karnataka. We have seen that in Himachal Pradesh. We've seen it. I'll tell you. When the Indian voter votes in a Lok Sabha election, he votes for the party and the leader who will ensure national security. He votes for the party and the leader who will take the image of the country, make it strong globally. He votes for the party and the leader who has a 30, 50, 100-year vision for the nation to be developed. He votes for the party and the leader who will make India third largest economy. So when he votes in Lok Sabha, he votes for the leader who will give a stable, strong central government with a development thrust. You talked about national security. Rajiv Bajaji, when a voter votes in the Lok Sabha election, he does not only consider the technical price of CNG, he considers India. I trust the Indian voter. Please respect the Indian voter. So in effect what you are really saying is, so what you are really saying is that state elections are fought on different issues and the Lok Sabha election will be fought on different issues. Yes, now you are saying the right thing. That's what you are saying. Now let's talk about national security. I agree. Mr. Modi is the first Prime Minister perhaps in 30 years. In fact, he is the first Prime Minister since 1973, after 1973, actually to give at least 80% of OROP to the armed forces. One rank, one pension. Mr. Mishra, can you hear us? Yes. One rank, one pension. For the first time, the Indian armed forces are actually getting the equipment that they require for the first time in 30 years. 30 साल में नहीं मिला साहब, क्या बात कर रहे हो? हालत खराब हो गई थी बच्चों की. पहली बार ऐसा हुआ है प्रदीप जी, 1,85,000 केवलार बुलेट प्रूफ वेस्ट ऑर्डर किए गए हैं, and out of them about 75,000 have already been distributed to the armed forces, which is fantastic. But at the Depsang Plains, in the Galwan Valley, sir, the Chinese have taken over at least 36 patrolling points which used to be in Indian control. Now, how do you explain that? Abhishek Mishra ji. See, Rajiv Bajaj ji, you are a very veteran journalist, and on matters of national security and defense issues, we must go by what the official statement of the Honorable Prime Minister. It is the official statement. I am quoting the official statement of the army. On the Depsang Plain and in the Galwan, just now we had a meeting of Chinese officials with Indian officials, and we could not come to a conclusion where the Indian army has officially released, where the Indian army has officially said that we want these patrolling rights back. Prime Minister Modi is the head of the government. Okay. Prime Minister Modi gave the official statement, which is the statement of our country to the whole world. Prime Minister Modi said, "Na koi aaya hai, na koi aayega." Once the head of the government of India gives a statement globally saying that there is no incursion of the Chinese in the Ladakh or Tibet or Nachal or Depsang anywhere, we have to abide by that statement. That's a statement by the head of the government. The Prime Sir, I am a journalist. I am a journalist. So I think on that there can be no further debate. I am not in the BJP. I am not from the BJP, sir. Does not arise. Sir, I am not from the BJP. The Indian army commanders and the Chinese army commanders had a conference last week in which the official statement was that we have not reached a conclusion that the patrolling points at Depsang at the Depsang Plains and the Galwan Valley, they have to be returned to us. Okay, I want to ask you a question. Please go ahead.
Do you respect the Indian Constitution? We all live by the constitution, certainly. Yes. And it is the same constitution which has been amended over 48 times. Yes. Certainly. So, Please go ahead. In the Indian Constitution, who is the head of the government? The President of India. No, The no, President head of the India. government. The President of India is the Commander-in-Chief of the Indian Armed Forces. Again, you are getting it wrong. President of India is the head The of President of India is the Commander-in-Chief of the Indian Armed This is my Forces. question. President is the head of the state. Yes. Who is the head of the government in India? Prime Minister. Am I right? The Prime Minister. Yes. He is the executive head. Yes, Yes. certainly. So, by constitution, President is the head of the state, Prime Minister is the head of the government. Yes. So the head of the government, when he has stated officially, So what? there is no incursion by China. So what? So are you saying that the Indian Army Commander is lying? Are you saying that even tiny Dhillon lied to the people of India? Are you saying that, Mr. Abhishek Mishra? This is the official. I am quoting the official statement of the Indian Army. They held a press Prime briefing. Minister lied? Are you even suggesting that the Prime Minister lied? He is the head of the I government. am saying that the Prime Minister of India said nobody has come into Indian territory, Yes. and he's absolutely right, because Yes. we are talking about no man's land. There were certain patrolling points in no man's land where there was joint patrolling from the Chinese and from the Indians. We do not have the right at 36 points to patrol over there. The Prime Minister is absolutely right. Nobody came into the territory held by us. But there is a no man's land in which we were allowed to patrol. Out of the 70 points in 36 points, we are not able to go there. No man's land. Mr. Mishra, now don't split hairs with me. I have been covering defense since 1982. So don't try and tell me that. Yes, please go Let me ahead. reply. Kindly let me reply. बोलिए. So at least now Rajiv Bajaji has accepted that the Prime Minister. I am very sorry. said- I never said that the Prime Minister Prime lied. Minister of What do you mean by India accepted? has I can play the tape back to you. Chinese- Mr. Mishra, I can play the tape back to you. I never said the Prime Minister lied. I said the Indian Army commanders had said that there are 36 That's the buffer points zone. I'm where coming we to are that. not allowed I'm to coming patrol. that. Please let me reply. I'm coming to buffer zone. Please go ahead. Buffer zone. So the country must know one thing, that in Indian territory no Chinese have come. Sir, it is not a buffer zone. It is not a buffer zone. Oh, With God. regards to the buffer zone, there is a ongoing talks, military level talks, and both sides are in the process of disengaging to the point. We are not in the process of disengaging. We are not in the process of disengaging. Again, you are mistaken, sir. You are badly informed. Why don't you read up a little bit? I am speaking what Why the don't you military is update your I am speaking what the information? military We says. are not disengaging. I will not agree to Rajiv. We are Bajaji's not statement. disengaging. Chinese have Again, taken this petrol is for the I do not information of agree. our viewers. Mr. Abhishek Mishra does not know what he is talking Rajiv about. Bajaji is What giving we a are false doing here is we are asking the Chinese that if you don't want us to, escalate the situation, you please give us these 36 points back. I cannot go by what leftist liberals say. I have to go by defense ministry. I have to What go we by do military is- talks. No, sir, let him speak. Let him speak. I would love to hear him speak, because let's be very clear. The fact is, what the Indian Army commanders have said in no uncertain terms to the Chinese commanders is, hey, listen, if you do not withdraw from here, we will be forced to take over certain parts of your territory which we have given up in good faith. Yes, that is what I said. That there is a process of dialogue going on to force disengagement and go back to the pre-existing places. That's what's going on. Sir, it has been going on. It has been going on now for the last 3 years. The opposition has been saying that you have given up part of our territory. Yes, now, that is a how lie. are you going to reply? That is a lie. You also agreed that no Indian territory has been taken by the Chinese. Sir, That is patrolling opposition points have been lie. taken over. That is a crime done by the opposition on national security. So patrolling points have been taken over. अभिषेक जी एक प्रॉब्लम हो गया है कि कर्नाटका 40% कमीशन में सरकार चला गया. You lost the government in Karnataka. Yes. Now Priyanka Gandhi and Congress leaders allege 50% commission kickback in Madhya Pradesh. And what you have done is you have filed FIRs in every district against all leaders, including Priyanka Gandhi, but not going into the charges of corruption of 50%. 40% mein you lost Karnataka, and 50% is going to be a big challenge.
Priyanka Gandhi refuses to go back. She says, no, I stand by my stand. All the Kamal Nath, all the strong Digvijay Singh, everybody stands by what they were. There's 50% commission, 50% commission. They have been giving proofs after proofs. Mishra ji, kaise karoge? 50% commission. And here is the Prime Minister says, as long as I am there, I am totally against Bhrashtachar, Parivadvad and Tuštikaran. You think that's not being followed in Madhya Pradesh, sir? Mishra ji. Okay. मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मान लीजिए मैं आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाला हूं और मैं कहीं जाके एक लेटर पैड पे लिख दूं कि नामबिहार जी ने मेरे से 50% कमीशन भ्रष्टाचार लिया, तो नामबिहार जी पुलिस केस ही करेंगे ना कि मेरे को ये डिफेम कर रहा है, झूठे अफवाह फैला रहा है। तो वहां पे भी इलेक्शन है और कांग्रेस पार्टी हार रही है, तो डेफिनेटली कांग्रेस इस प्रकार का षड्यंत्र रचते हुए कुछ लोगों से लिखवा लेना कि 50% ले लिया गया, टेक्निकली 50% जो कोई किसी से कैसे ले सकता है, इस प्रकार का मिथ्यापूर्ण तथ्यहीन बातें। और पुलिस has done the right thing. If somebody is spreading falsehood to defame a government, the government is duty bound to register a police case against the people spreading false information. तो नामबिहार जी ये एक तरह से झूठे इंफॉर्मेशन फैलाने का केस है, जिसमें प्रियंका गांधी जो सत्ता के लिए इतनी भूखी हो गई है कि वो अब छल कपट और झूठ पे आ गई है। बड़ा दुख की बात है। जो महिला हमेशा गौतम बुद्ध की बात, आई नो इफ यू हैव सीन अर्लियर इंटरव्यूज, शी यूज्ड टू से दैट आई एम फॉलोइंग द बुद्धिस्ट फिलॉसफी। प्रियंका गांधी हमेशा बौद्ध धर्म की बातें करते थे, तो गौतम बुद्ध जी ने कभी नहीं कहा कि आप छल कहिए, झूठ बोलिए, उन्होंने कहा कि आप आत्मदीपो भव, गौतम बुद्ध जी का मेन स्टेटमेंट। और प्रियंका गांधी लेकिन अभिषेक मिश्रा जी, क्या ये फॉलोअप होगा? गौतम बुद्ध ने कहा आप दीपो भव, प्रियंका गांधी कह रही है सत्ता दीपो भव, सत्ता के लिए आग लगा दो, झूठ बोल दो। सर, लेकिन क्या ये फॉलोअप होगा? मेरा ये कहना है कि ये जो आपने एफआईआर फाइल किए हैं मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पर, मान लीजिए आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं और बिना सबूत के कांग्रेस ने ये आरोप लगाए हैं, तो क्या ये एफआईआर फॉलोअप होंगे? क्या विल दे बी ब्रॉट टू बुक? विल दीज पीपल बी पनिश्ड फॉर स्प्रेडिंग लाइज अबाउट यू? सर राजीव बजाज जी, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो, यू नो द लॉ ऑफ द लैंड, एंड वंस a FIR is registered, it has to go to the court. Police has to give a charge sheet in the court within 90 days. Police has to give a report. So FIR is not complaint. FIR means it's now a matter of the court. So there will be a follow-up. There will be once a FIR is done in India, investigation is compulsory. Charge sheet is compulsory. So you yourself know FIR means that it is a serious matter. Now courts will take decision upon the investigation of the police. Now the silence of the Prime Minister is deafening. The silence of Prime Minister is deafening. बार बार कह रहा कि महिला पहलवान से लेके किसान आंदोलन से लेकर 750 लोग मर गए थे। 2020 Delhi riots. The Prime Minister never spoke. The Prime Minister never spoke on Rahul Gandhi's allegations on Adani in the Parliament. The Prime Minister never spoke on China. The Prime Minister never spoke on Pulwama intelligence failure. He never spoke on the bad work done during Corona, and now Manipur, Haryana. So sir, when is the Prime Minister really going to speak in detail about these things, Mishra ji? Parliament में भी बोले कि the longest भाषण में सिर्फ शायद दो मिनट उन्होंने कहा कि Prime Minister मणिपुर के बारे में बात किया. When is the Prime Minister going to speak, Mishra ji? मुझे लगता है आप बहुत ही बिजी पर्सन हो कि आप टीवी नहीं देख पाते हो, आप बिजी रहे होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में 2 मिनट बोले, बीजेपी नहीं बोले थे। प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में 2 घंटा 13 मिनट, दैट इज द रिकॉर्ड। लेकिन नामबिहार जी कह रहे हैं वो साइलेंट है। कांग्रेस एलिगेशन वेरी बिजी पर्सन, ही सेकंड राहुल गांधी एलिगेशन। लाल किला पे प्राइम मिनिस्टर ने 90 मिनट बोला। अब लोकसभा में 2 घंटा 13 मिनट, लाल किला पे 90 मिनट, लेकिन नामबिहार जी कह रहे हैं वो साइलेंट है। तो नामबिहार जी आप इतने बिजी हो, टीवी नहीं देख पाते। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं द कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस चार्ज मिश्रा जी, इट इज नॉट प्रदीप नामबिहार और अजीत बजाज, राहुल गांधी देश से। और ये पूरे लिस्ट करके उन्होंने बोला, महिला पहलवान से लेके किसान आंदोलन से लेके 2020 दिल्ली रॉयट्स से लेके अडानी पर नहीं बोले, अडानी चाइना एग्रेशन, पुलवामा इंटेलिजेंस फेलियर। आई मीन दिस इज व्हाट राहुल गांधी सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जयराम रमेश, वेणुगोपाल, इनके चार्जेस है। नामबिहार जी, SEBI is investigating that company you referred to.
Is it right for the Prime Minister to comment whether there's a SEBI investigation going on into a company? Okay. Let a report come out. See, the Congress, because if it is immature, if the Congress party does not follow the law of the land, does not know the autonomous institutions who are in charge of various investigations, what can we do? How can the Prime Minister comment when there's a SEBI investigation going on into the company referred to? Similarly, with regards to Manipur, he referred to it on the Lal Killa. He spoke Red Fort. I was present at Red Fort that time. He spoke in the initial statement itself. In the parliament, he spoke. In fact, in the parliament, he spoke for 2 or 13 minutes. He broke the record, the longest speech by Prime Minister, no government mission. Imagine that much of the importance he's giving. He wants to put out a message to every citizen of India that he's taking 2 hours, 13 minutes and expressing his views on each and every point which the citizen is interested in. He spoke for 90 minutes from the Red Fort, which is also a record. Why? Because he wants the people of India to hear what are his views on all the issues. So when a Prime Minister is speaking and is putting the views across the people of India, the Congress party is a foolish party. It does not understand anything. It has become deaf. If after Prime Minister is saying, oh, you cannot, but Namber ji, you at least must not ask this question. मिश्रा जी, आपका कहना है कि 9 साल बेमिसाल और उनका लूट काल कांग्रेस का कहना है कि मनमोहन सरकार जी, मनमोहन सिंह जी ने जब छोड़ के गए तो पेट्रोल US dollar, he said US dollar was 56.57. मनमोहन सिंह जी 2013-14 में हैंडल कर दिया था 56.57, and now the US dollar is 82.83. yes, around 83 per rupees per. तो और दूध, उनका कहना है दूध हमारे काल में मनमोहन सिंह 35 per liter और आज विनाश काल है 66. Every kid, every child born with 1 lakh debt, that is what the Indian National Congress is saying. तो बोले कि ये कौन सा विकास है, ये कौन सा 9 साल बेमिसाल है, कैसे करोगे? How are you going to convince the people, Mishra ji? One thing I'll suggest to you. आप मुझे बताइए, अगर Prime Minister and the Minister, Cabinet Ministers, if they take a decision, can somebody who is not part of the Cabinet of India, according to Constitution, can he sit outside on the road somewhere and say कि ये देखो पेपर है, मैं इसको नहीं मानता हूँ, मैं फाड़ रहा हूँ? Rahul Gandhi tore up the ordinance. That was Prime Minister authority. Cabinet decision, Prime Minister decision. He didn't even say Prime Minister विचार करेंगे. He is saying मैं हूँ, कौन मनमोहन सिंह, मैं फाड़ दिया और मैंने आज फाड़ दिया, खत्म हो गया, बिल खत्म हो गया. कौन Prime Minister, कौन मनमोहन सिंह, कौन Cabinet? This is the anti-constitution approach of Rahul Gandhi. Sir? He thinks he's supreme. He can tear up a government bill on the road and say who is Prime Minister, कौन है मनमोहन सिंह? So please do not speak about Manmohan Singh. Rahul Gandhi showed to the world कि ये मनमोहन सिंह की वैल्यू इतनी है. Sir, but the price of the dollar. Sir, but the value of the dollar. It's at almost 83 rupees today. And Modi Sahib was the most critical. He said that very shortly he's going to cross my age too. और जब डॉलर ऊपर जाता है और रुपया नीचे गिरता है, इसका मतलब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. ये 2013-2014 की कैंपेन में बोला गया था. आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला. अभी तो डॉलर साहब 83 साल का हो गया, मतलब इट्स 83. क्या कहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, डॉलर, रुपी, ऑल इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, ऑल येन हो, युआन हो, यूरो हो, you have to understand these are all done at the international level. By the way, personally, व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको बता दूं, I think the dollar can even reach 87 rupees, which will be absolutely all right. Its actual range is between 83 to 87, which is absolutely okay for the Indian economy. Let's be very clear, the way the world is right now. That's it. But I am only pointing out that the BJP has used these very things against the Congress. The Congress was not able to defend itself properly at that time, which is fine. But all I am asking you now is, you have suffered before. You have suffered because of overconfidence in Karnataka and in Himachal Pradesh. Don't you think you are being somewhat overconfident even as far as the Lok Sabha elections of 2024 is concerned? Because you will have to look at the price rise. Unless and until you give relief there, you provide some relief there, especially with regard to petrol and diesel. Listen to me. All your oil companies, all the oil companies of India are now back to normal. The huge debt that the Manmohan Singh government had run up with regard to subsidy on petrol and diesel is now over.
You can afford to give subsidy. You can afford to bring down the oil prices a little bit in India. Are you going to do it, Mr. Mishra? See, again, I'll repeat what I said earlier, that the difference between the Congress government under Manmohan Singh and Modi ji's government is that in Modi ji's government, the track is clear towards a developed country. There is a vision and there is a long-term focus. In Congress government, the center was missing. There was no agenda, no progress, no development, nothing. Somebody was tearing papers, somebody was doing this, somebody was doing... So that's why people voted for you. Somebody was doing a scam, a full scam. Under Modi ji's government, there is no scam. There is only success. There is only success for the Indian people. So what you are asking about a price rise? Yes. Now, with regards to the technical point of price rise, there is, in India, we are a capitalist country, there is a free market economy. And yes, the government always is aware of what is happening. The RBI, the government, the finance ministry, they all take care. There is a food processing ministry. And definitely, whatever issues are required for the welfare of the citizens, we will take. So, because there is also market dynamics involved. So, sometimes what happens, there is a fluctuation. Sometimes prices go up. Mr. Mishra. RBI and the government is very much focused on looking into it. And we Mr. Mishra, with regard to petrol and diesel prices, the petrol and diesel prices have been kept deliberately high so that the debt incurred by the oil companies during the Manmohan Singh government era could be paid off. Now it has been paid off. So now you can actually allow market forces to apply on petrol and diesel prices. So they will come down by at least 10 or 20 rupees. That will be a huge relief for people. Are you willing to do that? Will the government consider doing that? The government, see, Bajaj ji, you have to understand the basic intention. What is the basic intention of this government? The intention is Sabka Saath, Sabka Vikas. Okay? So in Sabka Vikas, decisions for the welfare of all will be taken. Be rest assured, be relaxed that the right decision at the right time which benefits the country and its people will be taken. That is the only mantra of this government. और चलते चलते सर सबका विकास और सबका विश्वास और आप भी विश्वास रखिए. Sir, by the way, we were the first. By the way, I was the first person in 2003 to say that Mr. Modi will be the Prime Minister of the country one day. I know. Yeah. Now, but over here, I must ask you this, chalte chalte, because I think we've run out of time, Pradeep ji. Just one small thing. How are you going to counter the Congress's charge with regard to the Comptroller and Auditor General's report, which talks about the Dwarka highway, where the quoted price, the quoted cost of the highway was 18 crores per kilometer, and the final cost turned out to be 251 crores. I know Mr. Gadkari has given a wonderful explanation for the same, but 18 crores and 251 crores is a huge difference. Mr. Mishra. Yeah, see, I am not an auditor and I do not have any papers. So, CAG also is a government body. Honorable Minister also, Gadkari ji has given a statement. So, it has been tabled in the Parliament. Now, CAG report goes in the Parliament. So, let people who have auditing experience and people who are more aware of such issues of audit, let them comment on this. I am not. Mishra ji, 7 schemes have been red flagged. 7 schemes have been red flagged, including Ram Mandir Trust, which is your flagship. Ram Mandir. उसके 100% यूपी वहीं से आने वाला आपका राम मंदिर में. कैग ने उसको भी रेड फ्लैग कर दिया है. देखिए होता क्या है. For example, when you build a very big mansion, somewhere some small mistakes may happen by some contractors. So similarly, in the like the 2G scam. नहीं 2G was the entire country. पूरा आसमान ले लिया, पूरा 2G ले लिया. अरे वो सबको तो एक्विट कर दिया यार. सब जितने भी थे सब तो एक्विटेड हैं. सुन तो लीजिए. राम मंदिर ट्रस्ट में कोई सेल परचेज हुआ है लोगों के बीच में कोई स्मॉल पार्सल ऑफ लैंड के लिए. तो सीएजी ने विषय उठाया है, उसको आगे देखा जाएगा. That is a very right, Mr. Mishra, great pleasure talking to you. Thank you so much, sir. Wonderful, really wonderful talking to you. And I hope what you say is true, by the way. It's good for all of us. Very frankly speaking. I hope what you are saying is true. That's all. Yes. नमस्कार और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. आप विश्वास रखिए. फिलहाल वंदे मातरम. Thank you very much. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. जय शिवाजी.
right? Now let's go across to Mr. Balaji Gade Patil, our old friend from the Congress. He's with us. Gade Patil साहब नमस्कार. सर नमस्कार सर नमस्कार. नमस्कार सर नमस्कार. कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद. हाँ काफी दिनों के बाद आए हैं. यस सर. इसलिए बड़े रिलैक्स लग रहे हैं, बड़े खुश लग रहे हैं, बड़े क्या बात है सर. इसलिए बड़े रिलैक्स लग रहे हैं, बड़े खुश लग रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं वो आकर के यही बोलते हैं कि प्राइसेस के बारे में मत पूछो भाई, कीमतों के बारे में मत पूछो. कहने का मतलब ये हुआ, मतलब आपका काम जरा आसान हो रहा है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है. गड़े सर बात सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे यहाँ पे चर्चा के लिए बुलाया. और बजाज साहब आप छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह दिख रहे हैं. आपका नया लुक बहुत बढ़िया नजर आ रहा है. जय भवानी. आज जी जो मुद्दा जो सवाल आपने पूछा कि बीजेपी प्राइजेस के बारे में पूछने नहीं दे रही है जी, लेकिन एक बदलाव लोगों के यहाँ पे आ नहीं पाया. आपके कॉल्स मुझे आते थे लेकिन मैं कहीं पे ट्रैवलिंग में रहता था, लोगों से मिल रहा था तो आ नहीं पाया. तो वो 2 महीने का पूरा लोग क्या कह रहे हैं मैं बताना चाहता हूँ. अभी लोग बदलाव चाहते हैं और प्राइस के बारे में, हर चीज के प्राइस के बारे में, पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हो, उस बारे में अब लोग बोलने लगे हैं. जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है वो अभी कहने लगा है कि अभी इस देश में हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, जो भी चल रहा है वो अफोर्ड नहीं कर सकते. हर तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम इन लोगों ने किया है. मणिपुर की बात कीजिए, सदन में, संसद में मोदी जी उसके ऊपर एक भी बात कहने के लिए तैयार नहीं थे. उसके बाद जब राहुल गांधी की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट ने लौटाई और जो भी हुआ वो बेकायदेशी रहे उन्होंने कहा, और राहुल जी जब सदन में आए और उन्होंने जो सवाल पूछे उन सवालों के ऊपर कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं था. तो स्मृति जी का हमने भाषण सुना, सभी देश ने उसको देखा कि किस तरह से इस देश की राजनीति को, जो तत्वों के ऊपर चलती थी, जो लोगों के हित की बात करती थी, उस राजनीति को कौन सी लेवल पे भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने ला के रखा है वो हमने देखा है. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी लोग बोलने लगे हैं और जब वेब तैयार होती है और जो लोग बोलने लगते हैं पिछले 10 सालों में, सर पिछले 10 सालों में मोदी सरकार, आरएसएस और उनके सभी लोगों ने लोगों को गुमराह किया था. लेकिन आम लोगों को आप कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक गुमराह कर सकते हैं. धर्म की, जाति की राजनीति के ऊपर मूल जो मुद्दे हैं, फंडामेंटल जो मुद्दे हैं, उनसे आप थोड़ा सा गुमराह कर सकते हैं. लेकिन जो गरीबी है, जो भूखमरी है, जो महंगाई है, वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की है. हर दिन जब किसानों को, जब गरीबों को किसी दुकान में कोई चीज खरीदने जानी पड़ती है तब उन लोगों को वहां पे इन सभी सवालों का, इन सभी समस्याओं को फेस करना पड़ता है. तभी अब लोग बोल रहे हैं कि 2024 हमें मोदी नहीं चाहिए, तो नहीं आएंगे सर. गड़े पटेल साहब, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि उद्धव सेना ने धोखा दिया, उद्धव ठाकरे जी ने धोखा दिया, उद्धव सेना ने धोखा दिया और हमने वो पूरा पार्टी इस तरफ खींच लिया, पूरे जितने थे उनको हमारे साथ ले लिया, उद्धव ठाकरे जी के पूरे गुट को ले लिया और हमने सरकार बना दी है. आप हाल ही में विदेटीवार जी और आप उद्धव ठाकरे जी से मिले भी थे. कोई कांग्रेस और शायद उद्धव ठाकरे जी का कोई ये था, मीटिंग्स था. तो ये इस प्रकार से देव फडणवीस कहना, क्या उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे जी और जितने दिग्गज नेता वहां से यहाँ पर आए, इनके पूरे अजित पवार जी के पूरे गुट यहाँ पर आए, तो क्या आपको लगता है कि ये बदलाव होगा? बीजेपी का टारगेट है 45 आउट ऑफ 48, 48 में से 45 सीट बीजेपी का टारगेट है महाराष्ट्र में. उत्तर प्रदेश उनका 100% चाहिए. योगी आदित्यनाथ वहां पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे एकदम लगातार पे काम पे जुड़े गए. टारगेट 45 सीट. क्या ये 45 आउट ऑफ 48 होगा? और थोड़ा वर्णन कीजिए, आप विदेटीवार जी उद्धव जी से मिले थे, किस कारण थे?
नहीं सर, कल जो मुलाकात हो गई हमारी उद्धव ठाकरे साहब के साथ, माननीय विपक्ष के नेता महाराष्ट्र के विजय वडेट्टीवार साहब, उनके साथ मुझे वहां पे जाने का अवसर मिला। वो एक नॉर्मल सी चर्चा थी। इंडिया की बैठक 31 अगस्त को महाराष्ट्र में हो रही है जी। उस सिलसिले में कुछ उन लोगों की, बड़े लोगों की चर्चा हो गई। उसके बाद उन्होंने शुभकामनाएं दी, क्योंकि विरोधी पक्ष नेता, विपक्ष के नेता बनने के बाद पहली मुलाकात थी। बस यही नॉर्मल मुलाकात थी, उसके अलावा कुछ वहां पे बात नहीं हुई। और जो मुद्दा नामबियार जी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे 45 का टारगेट रखा है, और जो भी उद्धव ठाकरे ने उनको धोखा दिया, जो फडणवीस कह रहे थे, वो सर अभी जो महाराष्ट्र की जनता है वो क्या सोच रही है, इन सभी जो भी सवाल अभी बीजेपी कर रही है, उससे जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर देवेंद्र फडणवीस जी हो, उन लोगों को अभी ये जनता सीरियसली नहीं ले रही सर। 45 का टारगेट ले, वो तो उनका बस चले तो 48 का भी रख देंगे, उनकी कोई बात नहीं। उनका अभी इस देश में लोकतंत्र है, उनको टारगेट रखने का अधिकार है। लेकिन जो सर्वेज आ रहे हैं, उन सर्वे से अगर देखा जाए, अभी पीछे एक 15 दिन पहले की बात है, कुछ सर्वे आए हैं। तो लेकिन मैं उन मुद्दों पे जाना चाहूंगा कि फडणवीस जी कह रहे थे कि हमें उद्धव ठाकरे जी ने धोखा दिया जी। और इसीलिए एकनाथ शिंदे जी वहां पे चले गए। लेकिन ये धोखे वाली बात अभी आ रही है। उसके पहले हिंदुत्व की बात चल रही थी कि किसका हिंदुत्व असली है, हमारा हिंदुत्व असली है या एकनाथ जी कह रहे थे कि हमारा ओरिजिनल है, और वो कह रहे थे कि नहीं ये गद्दार है। तो जो एकनाथ शिंदे और उनके 50 साथी महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है वो छोड़ के चले गए, उनका एजेंडा ये था कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि अजित पवार अर्थ मंत्री है और वो हमें फंड्स नहीं दे रहे हैं जी। वो हमें भेदभाव कर रहे हैं, और उस राष्ट्रवादी के साथ हम कैसे बैठ सकते हैं जो हिंदुत्व के साथ नहीं है। और वो अजित पवार और राष्ट्रवादी और कांग्रेस, इन लोगों को विरोध करके वो यूटी में चले गए और एकनाथ शिंदे जी माननीय मुख्यमंत्री बन गए। तो बात यह है कि वही अजित दादा, अजित पवार जी अभी वहां पे अर्थ मंत्री बने हैं, वही राष्ट्रवादी उनके साथ अभी काम कर रही है। तो अभी तो ये सर बड़े मजे की बात है, एकनाथ शिंदे जी ने इसके ऊपर, अभी उनका हिंदुत्व कहां पे चला गया, अभी इन लोगों को फंड्स का, अभी अजित पवार अर्थ मंत्री चल रहे हैं। तो ये सभी, ये जो 3 लोग, देवेंद्र फडणवीस यानी कि भारतीय जनता पक्ष, और एकनाथ शिंदे जी की जो कि शिवसेना है, वो शिवसेना, और अजीत दादा, अभी तो उनका पार्टी कौन सी है, वो किस पार्टी के नेता है, राष्ट्रवादी किसके पास है, वो अभी तक उसका रिजल्ट आया नहीं है, तो इसके ऊपर मैं फिलहाल बात नहीं करूंगा। लेकिन अभी इन लोगों के पास सिंगल एजेंडा है, वो है लूटो, खाओ, भ्रष्टाचार करो। एक इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। यहाँ पे सर महाराष्ट्र में हर फेस्टिवल में आनंदाचा सीधा बोल के गरीबों के लिए अनाज दिया जा रहा है। उसमें दाल है, राइस है, गेहूं है, रवा, शुगर वगैरह दिया जाती है, ऑयल वगैरह। तो उसमें सैकड़ों करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि उसमें बिल तो 20 लाख लोगों का निकाला जाता है, 50 लाख लोगों का निकाला जाता है, और 1000, 2000, 2-3 लाख लोगों को देखने के बाद बाकी सब का सब, ये सीएम साहब हो या डीसीएम साहब हो या भी उनके जो भी बिजनेसमैन लोग हैं, उनके घर में, उनके पेट में चला जाता है। तो सीधी सी बात ये है कि ये जो 3 लोग हैं, अभी कुछ दिन पहले जब विपक्ष के नेता अजित दादा थे, तो उस वक्त तो दादा मोदी जी के खिलाफ हो या फिर देवेंद्र जी के खिलाफ हो या एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के ऊपर धर्मनिरपेक्षता की बात कहते थे। और अचानक से जब भोपाल में मोदी जी का भाषण होता है, मध्य प्रदेश में शायद, और वो कहते हैं कि 70,000 करोड़ नेचुरली करप्ट पार्टी, और वो नेचुरली करप्ट पार्टी जब बीजेपी में जाती है तब वॉशिंग पाउडर निर्मा से वहां पे एकदम क्लीन होके वो राष्ट्रहित में लग जाती है। और वो राष्ट्रहित वो एक ही है कि जैसे हमने किसान कायदों में देखा कि नाम किसानों के कायदों का था, लेकिन वो कारपोरेट के भले के लिए थे, उसी तरह ये जनता के विकास का नारा देके खुद का विकास और खुश का जो भी भ्रष्टाचार हो वो बचाने के लिए ये सभी करप्टेड लोग इकट्ठा आए हैं। ना इनको जनता की पड़ी है, ना विकास की पड़ी है। अगर विकास की बात करते हैं
अभी महाराष्ट्र की जो अवस्था है सर, कुछ जगहों पे महाराष्ट्र में, अभी मैं पिछले 2 महीने घूम रहा था, कुछ जगहों में महाराष्ट्र में इतनी बारिश हुई है कि जो बुनाई हुई थी वो सब बह गया है, और कुछ जगहों में बारिश ही नहीं हुई, वहां पे जो भी जिसको हम पेरनी बोलते हैं वो बुनाई हुई, वो अनाज आया ही नहीं, जो आया नहीं वहां पे किसानों ने फिर से दोबारा अनाज डाला, तो वहां पे अनाज डालने के बाद फिर से बारिश नहीं हुई, तो 2 तरह के संकट महाराष्ट्र में यहाँ पे अकाल के आए हैं। एक तरह पे जिसको हम बारिश की वजह से है, और दूसरी तरह से सूखा पड़ा है। तो इसके ऊपर सरकार क्या कर रही है? कुछ भी तो नहीं। इन्होंने तो कहा है के सर, सरकार ने तो कहा है कि उन्होंने तो एकदम सबको रिलीफ पहुंचा दिया है, सब कुछ कर दिया है, मतलब इतना बड़ा बजट भी एलोकेट कर दिया गया है, हर किसान के घर में सब कुछ पहुंच भी गया है। गड़े पाटिल साहब, नहीं सर, ये सब घोषणाएं हैं। अभी सर मैं पीक बीमा की बात करूंगा, फिर फसल बीमा जो प्रधानमंत्री के नाम पे चलता है, महापुरुष के, विश्व गुरु जी के, तो वो पीक बीमा का जो भ्रष्टाचार है वो गुजरात ने पीक बीमा से रद्द कर दिया है जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन हमारी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है वो 1 रुपए में पीक बीमा के नाम पे 1 रुपया तो किसानों से भरवा रहे हैं, ये तो लोग देख रहे हैं। लेकिन जो उन्हीं के नाम पे, किसानों के नाम पे जो सरकार फंड दे रही है वो कितना बड़ा है, वो 7,500 8,000 करोड़ का जो बीमा है जी, वो अगर देखा जाए तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि वो कंपनी में बीमा भरने से अलावा डायरेक्ट उन किसानों को दे देते, तो 5-5 हजार हर किसान को 4,720 रुपया, मैंने उसका हिसाब भी लगवाया है, 4,720 रुपया डायरेक्ट किसानों को मिल सकता है। लेकिन ऐसा करेंगे तो माननीय सरकार को, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, उन लोगों को पैसा कहां से मिलेगा? वो कंपनी तो कहने का मतलब ये हुआ, चलेगा? आपके कहने का मतलब ये हुआ कि किसानों को फिलहाल नहीं मिल रहा है कुछ? नहीं सर, नहीं, क्योंकि एक तरफ बाढ़ है प्रदीप जी, बहुत, मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन इन महाराष्ट्र। देयर इज अ ह्यूज ड्राउट इन सर्टेन एरियाज एंड देयर इज फ्लडिंग इन सर्टेन एरियाज, और वहां पर दोनों जगह के अलग अलग सॉल्यूशंस हैं साहब, दोनों जगह पे एक ही सॉल्यूशन नहीं है। वन सॉल्यूशन ऑफ कोर्स इज मनी, व्हाटएवर मनी यू, भाई अब देखो बीज का पैसा लगता है, खाद का पैसा लगता है, यूरिया का पैसा लगता है, फर्टिलाइजर का पैसा लगता है, बाकी सब चीजों का पैसा लगता है, वो तो सारा गया, सीधी बात है, या तो बह गया या सूख गया। अब ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे सर, या कितने गांव होंगे ऐसे जो ग्रसित हैं इससे? सभी महाराष्ट्र में अगर मुंबई, थाने एक जो रीजन है, अगर ये छोड़ दिया जाए, अर्बन एरिया जो है जहाँ पे खेती कम है, तो बाकी के जो भी 34 डिस्ट्रिक्ट है, 34 से 32 डिस्ट्रिक्ट अगर रीजन वाइज देखा जाए, तो अभी मराठवाड़े में देखा जाए तो नांदेड़ है, परभनी है, हिंगोली है, लातूर है, जहाँ पे बहुत सारी बारिश हुई है। जैसे कि नांदेड़ में डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जो वहां पे डाला था वो बह गया, जो बचा है अभी बारिश नहीं हो रही, अभी पहले ज्यादा बारिश हुई है उस वजह से बह गया, अभी बारिश नहीं है उस वजह से जो बचा है वो सूखा जा रहा है। अगर हम जिसको औरंगाबाद का रीजन कहते हैं, वहां पे औरंगाबाद, जालना, नगर का कुछ रीजन जो है, उस रीजन में अभी बारिश हुई नहीं है अभी तक। वहां पे जो भी किसानों ने डाला वो आया ही नहीं है, बहुत सारे किसानों ने तो उनकी जो अभी खरीफ की जो पेरनी थी वो पूरा का पूरा, वो ये सीजन उनका चला गया हाथों से, उनके हाथों में अभी कुछ भी नहीं आने वाला है, उनका अनाज अभी चला गया है, उनकी इस साल की आमदनी तो अभी चली गई है। तो अगर 30 जिले में से देखा जाए तो 50-50 है सर। 15 जिलों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, एक मोटा मोटा देखा जाए तो 15 जिलों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। So what is the solution? आपके मुताबिक सॉल्यूशन क्या है सर इसका, ये बताइए। सर सोल्यूशन यही है कि 7,500-8 हजार करोड़ का पीक बीमा जो है इन लोगों ने भरवाया है, तो वो बीमा कंपनी उन किसानों को जहां पे फ्लड की वजह से बह गया है, तो वहां पे एक समान से, सर एक पिछले साल भी मैंने एक बार यहाँ पे बात की थी। गड़े पाटिल साहब, मैं बोलता हूँ कि देव फडणवीस जी का कहना है कि ये 1 रुपी पीक बीमा इज अ सक्सेस। बोले कि ट्विटर के माध्यम से उन्होंने संबोधित किया कि देखो कितने किसान मुझे डायरेक्टली मुझ तक पहुंच रहे हैं कि आपके ये 1 रुपया वाले स्कीम पीक बीमा की वजह से हमारा कई 5,000 बच गया, कई किसान का 8,000 बढ़ गया। जो आपने 4,000 का फिगर बोले थे, बोले कि एक ये फिगर है, दूसरा 8,000 के आसपास वो फिगर है। बोले ये फिगर किसान खुद सामने आके बोल रहे कि हमको ये बेनिफिट हुआ। बट जैसे अभी बजाज साहब आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, अगर पीक बीमा है तो किसान रो क्यों रहे? गड़े साहब
गड़े पाटिल साहब, बिकॉज सर अभी क्या है कि देवेंद्र जी को जो बोलना है वो बोलते रहते हो, गूंगे और बहरी सरकार है, वो वन साइड बोलते रहते हो, लोगों का तो सुनते नहीं। लेकिन बात ये है कि किस लोगों को फायदा हुआ है। अगर फायदा हुआ होता तो किसानों से जाके पूछिए, वो बोल देते आपले सरकार सरकार लोगों के दार पे बोल के हाँ हाँ हाँ, आमचे सरकार तुमच्या दारी जो भी चल रहा है वो सर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार वो खुद के प्रचार के लिए कर रहे हैं, जनता का पैसा के ऊपर से हो रहा है। अगर वही पैसा उसी किसानों को मिलता, पीक बीमा की, मैं वो मुद्दे से हटना नहीं चाहूंगा, पीक बीमा के ऊपर जो भी 7-8 हजार करोड़ का जो भी वहां पे आया जाता है, 1 रुपया किसानों से तो लिया गया, करोड़ों लोगों ने, लाखों से किसानों ने बीमा भरा है। 4 अगस्त उसकी लास्ट डेट थी सर, वो करोड़ों लोगों ने, किसानों ने वहां पे अपना फसल का बीमा करवाया है, और राज्य और केंद्र का हिस्सा मिलवा के उसका अब्जावधि रुपए में, अब्जों रुपए का वो वहां पे उन कंपनियों को वो रुपया, वो भुगतान, वो प्रीमियम वहां पे हुआ है। वो प्रीमियम किसानों को मिल ही नहीं रहा है सर। अभी मैं भी एग्जैक्टली एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा बजाज साहब, वो इस तरह का है कि जिसके पास 2 हेक्टर जमीन है, जिसको 7 हेक्टर है, जिसके पास 5 हेक्टर जमीन है, और उसके 5 हेक्टर की हेक्टर पूरी बह गई है जी। पिछले साल के बीमा का भुगतान मैं बता रहा हूं, उन लोगों को कहीं पे 5,000 मिला है, किसी को 500 मिला है, किसी को 476 मिला है, किसी को 350 रुपए, किसी को 100 रुपए तक मिला है। कहने का मतलब ये हुआ, अरे सर कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पे ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत थी वहां पे बैंडेड लगाया जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ एग्जैक्टली त्रुटियां, एग्जैक्टली वही तो इसमें तो आपके मुताबिक कितना मिलना चाहिए? नहीं सर, आपके मुताबिक कितना मिलना चाहिए? इसमें जो भी है कि हर एकड़ को एक 10,000, 20,000, 25,000, जैसे कि अभी जो बागायती सेक्टर है उनका, जैसे केले है या फिर गन्ने की खेती है, वहां पे नुकसान ज्यादा होता है, तो उनके लिए एक वहां पे कीमत तय की जाए, उसके लिए विपक्ष की भी राय ली जाए, किसानों की राजनीति छोड़िए, किसानों की राय ली जाए। यहाँ पे सुनील केंद्रेकर बोल के एक IAS थे, वो रिटायर हो गए, उन्होंने VRS ली, तो उन्होंने एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को रिटायर होने के VRS से पहले, रिटायरमेंट के पहले, रिटायरमेंट जाहिर करने से पहले दी थी, और उन्होंने कहा कि हर एकड़ के लिए हर किसानों को इतना इतना पैसा देना चाहिए, वो गवर्नमेंट की तरफ दिए। Mr. Gade Patil, just one second, just a small thing, Pradeep ji. I'm sure Mr. Kishore Tiwari must have sent this to you too. 5 किसानों ने आत्महत्या करी आज यवतमाल में। इन टोटल 1,565 किसानों ने आत्महत्या करी है विदर्भ में इस साल। और वो इसकी वजह से क्योंकि नो कॉम्पेंसेशन हैज बीन गिवन, और उसके अलावा जो बेचारों ने लोन ले रखा था, बाकी सब ले रखा था, इसके बावजूद कि सरकार ने कहा है कि कोई नहीं आएगा, तुम्हें परेशान नहीं करेगा, सब कुछ नहीं करेगा, बेचारे परेशान है, क्या करें। हाँ, तो तीसरी चीज ये भी है कि महाराष्ट्र में आज भी 8 किसान तकरीबन हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। 8 फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड एवरी डे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ गड़े पाटिल साहब, मैं और प्रदीप जी इसके ऊपर ना जाने कितने सालों से काम कर रहे हैं। मैं तो इसके ऊपर 23 के 24 साल से काम कर रहा हूँ। फिगर जो था पहले 11 का होता था, अब 8 का हो गया है, क्योंकि आपने 3 जो है वो बाहर निकाल दिए हैं। आपने कुछ और वजह लगा दी है कि इसने आत्महत्या इसकी वजह से करी है, जिसकी वजह से एक्चुअल फिगर वही है, लेकिन फिर भी चलिए 8 का फिगर मान लेते हैं। तो इसके ऊपर क्या करे सरकार, आप ये तो बताइए, मतलब व्हाट डू यू डू? जो क्रॉप पैटर्न है क्लाइमेट चेंज की वजह से, सबको मालूम है बारिश का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, पिछले 6 साल से चेंज हो गया है सर। तो लिहाजा क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज होना चाहिए ना, उसके ऊपर कोई काम क्यों नहीं कर रहा है, ये बताइए। बिल्कुल सर, ये वही तो कह रहा हूं कि अभी यहाँ पे जिस तरह से हम इजराइल की बात करते हैं, और इजराइल के हर जो कृषि मंत्री आता है वो कहता है कि हम इजराइल की धरती के ऊपर यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, किसानों को बता रहे हैं, लेकिन जिसका जिक्र आपने अभी यहाँ पे किया कि यहाँ पे पैटर्न बदल चुका है, बारिश का पैटर्न बदल चुका है, तो क्रॉप का भी पैटर्न बदलना चाहिए। तो वो गाइडेंस कौन देगा? यहाँ के कृषि विद्यापीठ जो है वहां पे, वो एग्रीकल्चर वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनके पास हजारों करोड़ रुपए। सर आपने इजराइल की बात करी है, इट इज इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट दैट ओवर हियर ऑन अ लार्ज स्केल। वो जो ड्रिप और ड्रॉप इरिगेशन जो है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। इतने ज्यादा बड़े इलाके में, इजराइल इज अ वेरी स्मॉल कंट्री सर, बहुत छोटा देश है। इजराइल का जो पूरा भूखंड जो है वो बहुत कम है, पूरा मतलब पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 3 इजराइल आ जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं सर, 3 के 4 आ जाएंगे, जितना बड़ा है जी। मेरा ये कहना है कि जहां तक
इसका सवाल है, इसके लिए वील हैव टू हैव अ डिफरेंट सोल्यूशन फॉर दिस। बट माय पॉइंट इज पॉलिटिकली स्पीकिंग, राजनीतिक तौर पर आप ये बताएं, इस सरकार को वोट इसलिए दिया गया, ये सरकार पावर में इसलिए आई क्योंकि इन्होंने कहा कि आपकी जो सरकार थी, MBBS सरकार थी, वो निकम्मी सरकार थी, फेसबुक वाली सरकार थी, फेस टू फेस सरकार नहीं थी। ये कहा गया, ठीक है सर, कि आपकी सरकार फेसबुक वाली सरकार है, फेस टू फेस सरकार नहीं है। तो अब ये किसानों का काम नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का काम नहीं कर रहे हैं, ये बेस्ट जो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको भी बाहर निकाल दिया गया है, उनका काम नहीं कर रहे हैं। तो ये काम क्या कर रही है, ये तो बताएं सर। एक काम बहुत बढ़िया कर रही है, ये काम खुद का घर भरने का काम कर रही है। जो 50 खोखों की बात हो गई है, तो ये लोग स्टेट भाड़ में चला जाए, किसान भाड़ में चले जाए, इसी तरह से ये लफ्ज मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ यूज कर रहा हूं, क्योंकि किसानों के लिए सर, जैसे राहुल गांधी ने अपनी न्याय योजना में बताया था कि क्या करना चाहिए, और वो हम कर्नाटक में कर रहे हैं सर। तो मैं मुद्दे से हटकूंगा नहीं, लेकिन जो किसानों को पीक बीमा जैसी ये कंपनियां गवर्नमेंट ने बिठाई है, वो जो लूट हो रही है, अगर वो लूट डायरेक्ट किसानों को मिलती है, वो डायरेक्ट पैसा, डायरेक्ट बेनिफिट अगर किसानों को मिले। सर एक सेकंड प्रदीप जी, यू मस्ट कम इन हियर। प्रदीप जी, प्रधानमंत्री जी ये कहते हुए थकते नहीं है कि मैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी की बात करते हैं कि लोगों के बिल्कुल खाते के अंदर पैसा जा रहा है, और यहां पर आप कोई और ही बात कर रहे हैं। अरे भाई, जो लाभार्थी जो है, इंश्योरेंस जिसकी है, उस डायरेक्टली उसके अकाउंट में जाना चाहिए, कंपनी के थ्रू क्यों जा रहा है? राइट सर, एक बात मैं बताऊंगा, अभी मैंने वो मुद्दे आंकड़ों के साथ बताऊंगा, जो पीक बीमा का जो डायरेक्ट का जो आपने बताया उसी के ऊपर। सर इस साल का जो है 2022, अभी इस साल का जो बीमा है, 1,55,50,202 किसानों ने फसल बीमा भरा है जी। उसका जो है प्रीमियम जो है केंद्र राज्य उनका मिला के 7,430 करोड़ 87 लाख रुपए वहां पे आए हैं। तो अगर 1,55,00,000 जितने भी किसानों ने भरा है, अगर उस तरह से इसको डिवाइड किया जाए इन पैसों को, तो डायरेक्ट ये गवर्नमेंट अगर उन किसानों को दे देती तो 4,720 रुपए हर किसान को मिलता। लेकिन अभी ये जो पीक बीमा है, जब भी मिलेगा उस वक्त मैं जरूर आपके पास उस जानकारी के साथ आऊंगा, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इन कंपनियों को बिजनेसमैन, ये सर जो बोला कि ये सरकार क्या है, ये सरकार तो बिजनेसमैन के खुद के घर भरने का काम कर रही है, भ्रष्टाचार करने का काम कर रही है। कृषि मंत्री को हमारे विपक्ष के नेता ने पहले दिन ही, जब विपक्ष के नेता बने उस दिन ये सवाल पूछा था कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर खाद के भाव, जो कृत्रिम खाद है, उनके भाव 20% से कम हो रहे हैं, तो महाराष्ट्र की सरकार उस बुनियाद पर यहाँ के किसानों के लिए जो भी DAP है, यूरिया है, उन खादों के भाव क्यों कम नहीं कर रही है? तो उनके पास सवाल का जवाब नहीं था, वो गुमराह कर रहे थे, वो भटक रहे थे, क्योंकि वो 8 दिन पहले विपक्ष में थे और बाद में वो कृषि मंत्री अभी तक वो मेन सवाल तो यही है। देखो, बीमा सरकार की तरफ से ऑलरेडी इंश्योर्ड है, हाँ, 1 रुपया किसान को भरना है। अब किसान नुकसान में है, बिकॉज कहीं ज्यादा बारिश है, कहीं बारिश भी नहीं है, और दोनों तरफ से किसान को मार है। अब ये पेपर वर्क के वजह से डिले हो रहा है, क्या पंचनामा नहीं हो रहा है? अगर पंचनामा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज यही हो रहा है कि किसान को फायदा नहीं है, किसान को क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस के वजह से हो रहा है। अगर कोई चीज हो गया तो उसका पंचनामा होकर रिपोर्ट जाके इंश्योरेंस कंपनी, ये प्रोसीजर होता क्या है कि कौन ये पंचनामा करता है और कौन इंश्योरेंस, क्या जॉइंट पंचनामा होता है क्या? ये बीज कितना हो गया, कितना नुकसान हो गया, ये इंश्योरेंस कंपनी भी उस पंचनामा, इसकी मेथोडोलॉजी है जो महसूल डिपार्टमेंट है, महसूल डिपार्टमेंट, हाँ, तो वहां पे बहुत सारे महसूल मंडल होते हैं, महसूल मंडल खेती के अलग अलग। तो उस तरह से वहां पे किन मंडलों में कितनी बारिश हुई है, कितना नुकसान किन मंडलों में हुआ है, ये जो महसूल के अधिकारी है वो उसकी जांच करते हैं, पंचनामे करते हैं। तो सरकार इनकी है, मैं उसी मुद्दे पे आने वाला था और आपने उसका जिक्र किया। तो अभी ये जो तहसीलदार है, कलेक्टर है, तलाटी है, ये जो महसूल की यंत्रणा है, उन लोगों ने इसकी सही जानकारी देनी चाहिए। लेकिन ये सरकार, जैसे कि मेरे नांदेड़ जिले का बताता हूं, बहुत सारे जो भी तहसील है, जो महसूल मंडल है, उनमें बारिश ज्यादा हुई है, नुकसान ज्यादा हुआ है, लेकिन
उस तादाद में असली पंचनामे हो नहीं रही है, सरकार करवा नहीं रही है। आंकड़े को दबाने की कोशिश ये सरकार कर रही है और ये सच्चाई है। मैं यहाँ पे कोई भी राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान हूं खुद, तो यहाँ पे कोई भी राजनीति नहीं है। वहां फील्ड पे जाके आया हूं मैं, तो वो पंचनामे नहीं हो रहे। अगर पंचनामे नहीं हो रहे तो डेटा कलेक्शन उतना नहीं होगा, डेटा कलेक्शन नहीं हुआ है तो बीमा कंपनियों को उतना भुगतान नहीं देना होगा। और जो भी जैसे कि 100 लोगों का नुकसान हो रहा है तो ये कलेक्शन सिर्फ 20% ही कर रहे हैं, तो 20 लोग वहां बीमा कंपनी के लिए जा रहे, तो उस 20 लोगों को भी बीमा कंपनी ईमानदारी से उन निकषों के आधार पर भुगतान नहीं कर रही है। सो ये इंश्योरेंस कंपनीज कौन है सर? क्योंकि कंक्लूड करता हूँ जी सर प्लीज, इसको कंक्लूड करता हूँ। वो वहां पे भी बहुत सारी त्रुटियां है। जिस किसान का 20 एकड़ का नुकसान हुआ है उसको 500 रुपए मिले पिछले साल, और जिसका 1 एकड़ का हुआ है उसको 22,000 मिले हैं, और इसके प्रूफ है मेरे पास, वो मैंने कलेक्ट किए है किसानों के घूम पे। तो ये बीमा कंपनी जो भी कौन आपने है कहा सर? कि वो क्या रहा है, तो ये सब बीमा कंपनी के विकास के लिए, और ये बीमा कंपनी उनको कितने परसेंट देती है उसको थोड़ा का आप ही तो अगर स्टिंग ये करेंगे इंश्योरेंस तो कंपनीज जनता जो को पता हैं, चलेगा। ये क्रॉप इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं ये कौन सी हैं सर? कौन है ये लोग? सर इसमें हर जिले में अलग अलग कंपनियां हैं। अभी फिलहाल तो मेरे पास लेकिन उनके नाम इसका मतलब ज्यादा- ये हुआ, हाँ, प्रदीप जी सुनने वाली बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, अगर मान लीजिए 100 जगह पर नुकसान हुआ, 100 के 100 किसानों हाँ, ने बीमा भरा हुआ है, हाँ, इंश्योरेंस भरी हुई है, हाँ, पंचनामा सिर्फ हाँ, 20 लोगों का हुआ है, यानी 80 लोगों का हाँ, पैसा तो आपके पास रह गया ना, उसके बाद आप इंटरेस्ट जी, कमाएंगे। जी, जब तक के जी, बाकी सबका हाँ, पंचनामा नहीं होगा, यू आर अर्निंग इंटरेस्ट हाँ, ऑन दैट मनी, तो आपका तो फायदा हो रहा है ना। आपका तो फायदा है, कम से कम आप बांटें, जितनी ज्यादा आप देर लगा सकते हैं उतनी आप देर लगाएं। एवरीबडी मेक्स मनी एक्सेप्ट द फार्मर। कहने का मतलब ये हुआ। another major point is क्या ये पंचनामा लिखने के लिए लोग नहीं है, क्या शॉर्टेज है? ऐसे भी कुछ चर्चा हो रहा था कि पंचनामा लिखने के लिए लोग नहीं है। गड़े बाटे ऐसी साहब, कोई बात नहीं है सर। सर आज हमारे सरकार के पास हर गांव में तलाटी रहता है, वो महसूल का प्रतिनिधि है जो एकदम लोअर यहाँ पे है, और स्टेट में महसूल मंत्री जी है, और डिस्ट्रिक्ट पे कलेक्टर है। तो ये जो यंत्रणा है वो पूरी की पूरी यंत्रणा है सर। जी तो और अभी तो ये अभी ऑनलाइन अभी शुरू पानी हुआ भर है के कि भी- पहले से ऐसा था? कौन सा सर? ये जो इंश्योरेंस, देखिए साहब कि कोई ना कोई फॉर्म हाँ, थी इंश्योरेंस की, पहले भी थी। जी ऐसा जी, तो नहीं है कि ये अभी अभी शुरू हुआ है। जब आप लोगों की हाँ। तो सरकार थी पहले तब भी क्या थी। करता था सर, पहले सरकार डायरेक्ट जो किसानों का जब सब मुआवजा लिया जाता था, और उसके बाद वो किसानों के बैंक खाते में वो पैसे जमा होते थे। अभी ये पीक बीमा कंपनी को अंदर लाया गया है, और ये पूरा का पूरा जो भी मलिदा है, जो भी बटर है, वो पूरा का पूरा वो पीक बीमा कंपनी खा जा रही है। और वो किसके इशारे पे खाती है वो मैं यहाँ पे लोगों को बताने की जरूरत नहीं। अभी किसान भी हमारे जी इतने चालाक है, आपको भी पता है। और मैं आप दोनों से एक विनती करूंगा कि इसका स्टिंग ऑपरेशन किया जाए आपकी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। This is अभी very- 2 दिन पहले धनंजय मुंडे यवतमाल में थे। धनंजय मुंडे यवतमाल में थे, पूरे फार्मर जितने किसान हैं सब उनको घेर लिया था। बोले कि यहाँ पर सुइसाइड्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें तकलीफ है फार्मर्स के लिए, मगर सरकार की तरफ से कुछ हो नहीं रहा है। धनंजय मुंडे ने आश्वासन दिया कि दिनों के अंदर अंदर मैं पूरे चीज को सिस्टमाइज करूंगा, हर चीज को एक सिस्टम में लेके आऊंगा। तो इज द किसान क्या धनंजय मुंडे से सेटिस्फाइड है? देवेंद्र फडणवीस जी भी? No, sir. यस किसान धनंजय मुंडे हो या देवेंद्र फडणवीस हो या मोदी जी हो, उनसे सेटिस्फाइड नहीं है। और ये 1 रुपए के किसान बीमा का झोल भी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जब किसान फसल बोते हैं उस वक्त उनका पूरा का पूरा खत्म हो जाता है पैसा, वो कर्जा निकाल के बोते हैं, क्योंकि उस वक्त उनके पास पैसे नहीं होते। एज ए किसान का बेटा मुझे पता है। तो बहुत सारे किसान जो भी एकड़ी या हेक्टरी 500,000 जो भी भरने थे, वो भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, इसलिए वो भर नहीं रहे थे। तो वो जो किसानों के बीमा भरने की तादाद थी वो कम हो रही थी। तो सरकार ने यहाँ पे फंडा निकाला कंपनियों का दिवाला निकल, कंपनियों का ज्यादा से ज्यादा मुनाफा करवाने के लिए कि आप सिर्फ 1 रुपया भरो, आपका बीमा हम भरेंगे। और वो जो पैसा है वो किसानों के नाम पे, जनता के टैक्स का पैसा किसानों के नाम पे कंपनियों में डाला जा रहा है। और वो पैसा वाया कंपनी किसके घर में जा रहा है? वो मोदी जी ईडी लगाए,
सीबीआई लगाए और उसकी जांच करे, लेकिन ये तो होता नहीं है। लेकिन Right. आपने जो कहा किसान सेटिस्फाइड है क्या, तो सर ना किसान सेटिस्फाइड है, ना युवा सेटिस्फाइड है, ना विद्यार्थी है। मुंबई विद्यापीठ की आप जो भी चुनाव है उसकी न्यूज आपने पढ़ी होगी कल, तो यहाँ पे कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि बीजेपी को पता चल चुका है हर एक चीज बीजेपी सर्वे के आधार पे करती है सर। तो यहाँ पे स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के जो इलेक्शन है वो हुए नहीं है, क्योंकि उनका सर्वे है कि महाविकास आघाड़ी जीत रही है। अभी अजित पवार उनके गठ में जाने के बाद भी वहां पे एक भी जिला परिषद महापालिका के इलेक्शन वो नहीं ले रहे, क्योंकि उनको पता चल चुका है, उन्होंने सर्वे किए हैं कि महाविकास आघाड़ी के पक्ष में ये है ना विद्यापीठ। हर एक चुनाव अभी यहाँ पे मोदी जी बीजेपी और उनकी पूरी ये जो भ्रष्ट लोगों का महागठबंधन है, वॉशिंग पाउडर निर्मा के बाद धुलाए वाला, वो सब हार रहे हैं। इसलिए अभी एक भी चुनाव नहीं ले रहे, और मुझे तो लगता है कि ऐसा ही चलता रहा तो इस स्टेट के भी चुनाव नहीं लेंगे, राष्ट्रपति राजवट यहाँ पे लगा देंगे और आगे चले जाएंगे शायद। राइट, थैंक यू सो मच सर। गड़े पाटिल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। नमस्कार सर, जय हिंद, नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू। जय भवानी, जय शिवाजी। दिस इज वेरी वेरी अलार्मिंग प्रदीप जी, Yes. वेरी वेरी अलार्मिंग कि जिस इंश्योरेंस की बात अभी तक कर रहे थे वही इंश्योरेंस जो है वो फार्मर्स को नहीं मिल रही है। बट that's terrible, that's absolutely terrible. And at the moment with us from the Uddhav Thackeray Sena, Mr. Chintamani Kharkanis, our very old friend. Chintamani Kharkanis साहब नमस्कार। नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी। नमस्कार सर, बड़े दिनों के बाद आए हैं, एक श्लोक के साथ शुरुआत हो प्लीज। श्लोक क्या है कि ये पॉलिटिक्स में ज्यादा श्लोक नहीं बैठता है लेकिन पॉलिटिक्स के लिए बहुत कम श्लोक रहते हैं। और ऐसा देखेगा तो आज का जो पॉलिटिक्स है, आजकल जो पॉलिटिक्स का लेवल है जी, वो लेवल में तो श्लोक बिल्कुल नहीं बैठेंगे, क्योंकि श्लोक एक उच्च विचार रहता है जी, और ये पॉलिटिक्स उच्च विचार के साथ नहीं है। अभी एक ही मैं एग्जांपल उसके बारे में दे सकता हूं कि हमारे पास ये जाति भेद का जो सिलसिला चालू है जी, ये जाति भेद के सिलसिले में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसके बारे में हमेशा बात होती है जी, और ब्राह्मण डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी जातियां हैं, क्षत्रिय में भी बहुत जातियां हैं। जी, ऐसी बहुत सारी जातियां मिलके ये समाज, भारतीय समाज बन गया है, वो बनाया गया है। एक्चुअली ये बन गया नहीं है, बनाया गया है। उसके लिए उसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। और देखो कि जब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वृत्ति था, ये जाति नहीं था। वृत्ति बोलेगा तो ब्रह्म जानती सा ब्राह्मणा। क्षत्रिय के बारे में कालिदास ने लिखा है, उसने राजा दिलीप का वर्णन किया है। व्यूढ़ो रसका वृषभ स्कंधा शाल प्रांशुल महाभजा आत्म कर्म क्षमम देहम शात्रो धर्म विवाक्षिते। व्यूढ़ो रसका मतलब जिसका बैल रहता है ना, उसके जैसा उसका स्कंद खांदा है। वृषभ स्कंदा, सिंह जैसी वृषभ स्कंदा। व्यूढ़ो रसका बोलेगा तो सिंह जैसी छाती, बैल जैसा उसका खांदा। आत्म कर्म क्षमम देहम मतलब खुद की रक्षा वो कर सकता है और समाज की भी रक्षा कर सकता है, वो क्षत्रिय होता है। जिसके हाथ में शस्त्र धरने की ताकत नहीं है वो अपने आप को क्षत्रिय नहीं बोल सकता है जी। और समाज का संतुलन करने वाला वैश्य और समाज शुद्धि करने वाला शूद्र, ऐसी जाति व्यवस्था नहीं थी, ऐसी वर्ण व्यवस्था थी। ये वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में डाल के और उसमें पॉलिटिक्स में घोल के ये लोगों ने समाज का सत्यानाश कर दिया और इसके लिए ये सब हो रहा है। अभी ये जाति का मिनिस्टर, वो जाति का मिनिस्टर, उसका प्रतिनिधि ये सब करके ये लोगों ने वृत्ति का नाश कर दिया और जाति का उदय हो गया। उसके वजह से ये समाज का संतुलन बिगड़ गया। आज
बीजेपी के पूरे महाराष्ट्र में सामना के दे बर्न द कॉपीज। उनका कहना है कि ये उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी ने जो किया वो गलत किया। देवेंद्र फडणवीस जी का डिफेम किया और फडणवीस जी ने कुछ दिन यही पहले ये बोला था कि उद्धव जी ने धोखा दिया, उद्धव जी बेट्रे किया था देव फडणवीस जी को, और देव फडणवीस जी ने पूरे उद्धव सेना को खींच के इस तरफ लेके आए। तो आज जिस प्रकार सामना से लिखा, क्या बीजेपी कह रहा है कि डेरोगेटरी, बहुत नीचे स्तर का पॉलिटिक्स कर रहा है उद्धव सेना? हाउ डू यू सी सर, क्या नीचे स्तर का पॉलिटिक्स चल रहा है? अभी कौन नीचे स्तर का पॉलिटिक्स कर रहा है ये महाराष्ट्र की जनता जानती है। देखो, ये बीजेपी का कहना या फडणवीस का कहना हमारे ऊपर अन्याय होगा, हम हो गया, हमको फंसाया गया, हमारा विश्वासघात किया गया, ये कहने के लिए उनकी तरफ से तो ठीक है, लेकिन असल बात क्या है ये बात हमारे उद्धव जी ने बताई और तभी से उनको बहुत बुरा लगने लगा। सामना में जो बात छप के आई वो 100% सही है और सही बात होने के बाद में उनको मिर्ची लग गई। अगर वो बहुत लोगों को पूछा जाता है कि आपने सामना में ये न्यूज़ पढ़ा है क्या, तो वो लोग बोलते हैं, भाजपा के लोग बोलते हैं हम लोग सामना नहीं पढ़ते। अगर आप सामना नहीं पढ़ते तो सामना का एडिटोरियल इतना गौर से क्यों पढ़ते कि हर एक शब्द के ऊपर आप रिएक्ट करते, ऐसा क्यों करते? अगर आप सामना को वैल्यू नहीं देते तो ये सामना के ऊपर ये सब हंगामा क्यों खड़ा करते हैं? इसके लिए कि सामना जो बोलता है वो उनको चुभता है, सामना सच बोलता है और सामना सच बोलता है, ये तो सामना बोलेगा तो शिवसेना का और उद्धव जी का आवाज है। इसके लिए उनको बहुत गुस्सा आता है। जो बोला गया वो सच बोला गया और जो हो गया वो भी सच हो गया, क्योंकि हमारे उद्धव जी ने माँ बाप की शपथ लेके बताया कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस नहीं है। और अभी देखो ये देवेंद्र फडणवीस की हालत कैसी है, देखो उनको एक मुख्यमंत्री के नीचे काम करना पड़ता है, वो ब्राह्मण नहीं है। अभी यहाँ पे भी जाति व्यवस्था आ गई, उनको बहुत खराब लग रहा है। दूसरा जो उप मुख्यमंत्री आ गया वो भी ब्राह्मण नहीं है, मतलब दोनों नॉन ब्राह्मण के नीचे उनको काम करना पड़ता है। वो जो पवार साहब आए हैं तो उनके हाथ में फाइनेंस है, तो फाइनेंस बोलेगा तो उनकी पूरी नाड़ी उनके हाथ में है, उनकी पूरी डोर उनके हाथ में है। इसके लिए ये दोनों के अंडर उनको काम करना पड़ता है, उनका उन्हें बहुत दुख है। और जब भी एकनाथ जी शिंदे को उन्होंने मुख्यमंत्री पद के ऊपर बिठाया तभी उनको सत्ता के बाहर रह के उनको कंट्रोल करने का था, लेकिन अमित शाह जी ने ऊपर से फोन करके उनको बताया कि आपको सत्ता में बैठना ही पड़ेगा, आप उप मुख्यमंत्री का चार्ज ले लो, तभी उनको लेना पड़ा। उनकी इच्छा नहीं थी, उनको ऐसा लगा कि मैं ऐसा पॉलिटिक्स खेलूंगा जब भी मैं चाहूंगा और जैसा मैं चाहूंगा वैसा महाराष्ट्र की सरकार चलेगी, और अगर मैं चाहूंगा तो ये सरकार मैं कभी भी गिरा सकता हूं, लेकिन नहीं हो गया। अभी तो उनके सहारे उनको चलना पड़ता है, इसके लिए उनको बहुत तकलीफ हो रही है। कारखाने साहब, कहने का मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में अगर ये सरकार टिकी हुई है, एक तरफ एकनाथशिंदे, एक तरफ अजीत दादा पवार और बीच में देवेंद्र फडणवीस और उनके 103 लोग, 105 हुआ करते थे अब 103 रह गए हैं। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो ये सरकार चल तो रही है सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की वजह से, अगर देखा जाए तो नंबर्स को अगर देखा जाए, और देवेंद्र फडणवीस जी सबसे ज्यादा परेशान है। मतलब ये क्या विडंबना है, ये बड़ी अजीबोगरीब सरकार है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजीबोगरीब सरकार है, सचमुच अजीबोगरीब है जी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का सैंडविच हो गया है जी। ना सत्ता के बाहर जा सकते हैं कि ना सत्ता के अंदर रह सकते हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आ गई है। करेक्ट। और इसके लिए ही हैज बिकम इम्पेशेंट। उनका ऐसा कहना था कि हम लोग इनको दोनों को संभालेंगे, मतलब पहले एक को बाद में दूसरे को।
सत्ता भले नाम के लिए कुर्सी के ऊपर वो बैठे हैं, लेकिन सत्ता की डोर और डिसीजन सब मेरे हाथ में रहेगा। जी अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है। जी अभी तो उनकी बहुत हालत सैंडविच जैसी हो गई है, ना बाहर जा सकते हैं सत्ता के, ना अंदर रह सकते हैं। इतनी खराब हालत होने के बाद में उनकी जो संघ की जो परिवार है, वो संघ का परिवार भी अभी बहुत खतरनाक स्थिति में है। वो बहुत बेचैन है। उनको ना ये सत्ता उनको डाइजेस्ट हो रही है, ना सत्ता के ऊपर वो बाहर आ गए हैं, बाहर आ सकते हैं। इसके लिए ये महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति बहुत बेकार हो गई है। गडकरी साहब, आपने कहा कि संघ बीजेपी से दूर चला, डिवाइड हो गया है। पृथ्वीराज चौहान जी भी कुछ दिन पहले बोल रहे थे, जो पृथ्वीराज चौहान जी कांग्रेस के लीडर है, वो कह रहा है कि संघ आजकल मोदी जी के फेवर में नहीं है एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपको कैसे ये अनुमान लग रहा है? बिकॉज क्या है, आपने भी स्टेटमेंट दिया, पृथ्वीराज चौहान जी भी स्टेटमेंट दे रहे, बिकॉज आज संघ का एजेंडा अगर कोई फुलफिल कर रहा है तो मोदी जी है। आर्टिकल 370 जो संघ का एजेंडा था, मोदी जी फुलफिल कर दिए। राम मंदिर बनाने का स्थापना, वो मोदी जी फुलफिल कर दिए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड भी मोदी जी शायद लेके आएंगे। तो आज संघ के कोई काम कर रहा तो मोदी जी कर रहे, फिर कौन से ऐसे चीज आपको ऐसा लगा कि मोदी जी से संघ नाराज है और संघ नहीं चाहते कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने? मोदी जी ने सब चार चीज फुलफिल के लिए करगानी साहब। इट इज ऑब्वियस संघ मोदी जी के ऊपर जरूर नाराज होगा, क्योंकि संघ का पूरा सपोर्ट वो नागपुर में उनका मुख्यालय होने की वजह से उनके साथ में, गडकरी साहब के साथ में उनका कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। उनका आपस में मेलजोल बहुत अच्छा था। और संघ को ये मोदी जी का डिक्टेटरशिप बिल्कुल मान्य नहीं है। संघ ऐसा कभी कहता नहीं है कि ये भारत में ये टाइप का डिक्टेटरशिप आ जाए, और डिक्टेटरशिप अगर लाने का है तो संघ के कंट्रोल के नीचे आना चाहिए, ऐसा ही संघ को लगता था। लेकिन मोदी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। दूसरी बाजू से देखेगा तो मोदी जी का, उनका खुद का कद बहुत कम हो गया है। उनको अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। बहुत सारे अखबार अभी उनके अगेंस्ट में ये सब कर रहे हैं, और उनको अभी सिर्फ कांग्रेस का थ्रेट नहीं है, उनके प्राइम मिनिस्टरशिप को गडकरी का भी थ्रेट है। और इसके लिए गडकरी का थ्रेट बाजू में करने के लिए, उसका गडकरी को डिमोरलाइज करने के लिए, जैसे पहले भी उन्होंने, गडकरी वॉज प्रेसिडेंट ऑफ एंटायर बीजेपी इन कंट्री। यस, हाँ, गडकरी को पहले साइड ट्रैक करने के लिए उनके ऊपर बहुत सारा इल्जाम पहले भी लगाया। और अभी ये जो मथुरा का हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, ये मथुरा का एक्सप्रेस वे के ऊपर सर दिल्ली द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जो है जी, वो एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर ये मोदी जी का ही खास आदमी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, एक कैग में उसके ऊपर एक इल्जाम लगाया, उनके ऊपर एक ऑब्जेक्शन लिया गया कैग के अहवाल में, और उसकी वजह से गडकरी को वो लोगों ने कठघरे में खड़ा कर दिया। एक्चुअली कैग का जो द्वारका का जो रोड है, वो द्वारका का रोड का 18 करोड़ पर किलोमीटर उसका बजट था, लेकिन अभी इट हैज गॉन टू 250 करोड़ पर किलोमीटर, और 29 किलोमीटर रोड बनाने का था। तो ये सब इतना एस्केलेशन, प्राइस एस्केलेशन और उसका बिल पेमेंट होने के बाद में कैग ने उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, और कैग का ऑब्जेक्शन मोदी गवर्नमेंट होने के बाद भी अपने गवर्नमेंट के मिनिस्टर के ऊपर, मतलब गडकरी जी के ऊपर, मोदी जी ने उनको कैग को छोड़ दिया। क्योंकि कैग का जो प्रमुख है, वो कैग का प्रमुख
मुर्मू करके जो है ना, जी, गिरीश चंद्र मुर्मू, that's वो right. गिरीश चंद्र मुर्मू वो मोदी जी का खास आदमी है। जब भी मोदी जी गुजरात गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर थे, तभी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मुर्मू, जी, उनके साथ में काम करता था। और गुजरात से वो दिल्ली में मुर्मू को लेके गए और मुर्मू को ऐसा पोजीशन के ऊपर बिठाया जैसा ईडी सीबीआई उनके हाथ में है, वैसा ही ये कैग उनके हाथ में लेके जिसको चाहिए उसको नीचे दबा सकते हैं, ऐसा कंडीशन में लाके रख दिया। अभी गडकरी को दबाने का कोशिश मोदी कर रहा है, ऐसा ऐसा मेरा आरोप है, क्योंकि उनको थ्रेड गडकरी का है। गडकरी के बारे में सर्वपक्षीय मत ऐसा अच्छा है, गडकरी सबको हेल्प करता है, ऐसा बाकी पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं। और अगर मोदी पंतप्रधान नहीं रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन नितिन गडकरी है, और मोदी जी और शाह को ये मंजूर नहीं है। Sir, इसके Mr. लिए Murmu, गडकरी, Mr. Murmu was also the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. हाँ, आपको जम्मू याद होगा। कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उनके पास बहुत सारे जी। पोर्टफोलियो थे, लेकिन वो मोदी जी का खास आदमी था। जी, अभी भी है, फ्रॉम गुजरात, अभी भी है। वो ओडिशा से आए हैं, जी, ही इज फ्रॉम ओडिशा, Yes. लेकिन गुजरात में उनका उत्कर्ष हो गया, जी, गुजरात में उनके पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आ गया। अभी जो मोदी जी बोलते हैं वो करते हैं। अभी उनका ही आदमी उनके ही एक मिनिस्ट्री के एक मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगा रहा है, इसका मतलब देश क्या समझे? ऐसा कभी होता नहीं है। ये गडकरी तो क्या अपोजिशन पार्टी का कोई लीडर नहीं है, अपोजिशन पार्टी के स्टेट का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, उनका ही कैबिनेट मिनिस्टर, उसके ऊपर अगर ये इंक्वायरी लगा रहे हैं तो उसके पीछे राज अलग है। मोदी जी बहुत घबरा गए हैं। उनका जो 15 अगस्त का जो स्पीच देखा, वो स्पीच के ऊपर भी मालूम पड़ता है, उनको मालूम पड़ गया है कि हम लोग वापस सत्ता में नहीं आ सकते, कम से कम वो खुद आ नहीं सकता। और उनको मालूम पड़ गया कि उनके मिनिस्ट्री में भी राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जैसे लोग उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं। उनके मिनिस्ट्री में भी बहुत सारे लोग उनके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं करते क्योंकि वो लोग उनको डरते हैं। और उनके जो एमपी है वो एमपी में भी अनरेस्ट है। इसके लिए अगर गलती से भी मेजॉरिटी आ गई तो मैं खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, मेरे लिए दूसरा कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होना चाहिए। एंड गडकरी वाज द बेटर ऑप्शन फॉर पीएम प्राइम मिनिस्टरशिप। इसके लिए गडकरी का काटा निकालने का कारखाने साहब, बट महाराष्ट्र में मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि अगला झंडा वंदन इंडिपेंडेंस डे का लाल किला से मोदी जी ही करेंगे। अमित शाह जी ने भी पार्लियामेंट में बोला कि मोदी जी मई 2024 में फिर तीसरी बार उनका ये स्वेरिंग इन सेरेमनी होने वाला है। एंड महाराष्ट्र के लिए टारगेट दिया 45 आउट ऑफ 48। कारखानी साहब, 45 आउट ऑफ 48, दिस इज द कॉन्फिडेंस लेवल। और टारगेट दी दिए देव फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार, और तीनों काम पे लग गए। और कोऑपरेटिव मूवमेंट को महाराष्ट्र में हाईजैक करने के लिए जबरदस्त तरीके से आपने देखा, मंच पर पवार, शरद पवार साहब भी थे, अमित शाह जी थे, अजित पवार, तो एनसीपी has been brought in. यस एनसीपी। तो 17 ये गणित वो, और फास्ट ट्रैक में लोग काम कर रहे हैं, बहुत फास्ट ट्रैक में काम कर रहे हैं कि कैसे भी पूरे एनसीपी के कोऑपरेटिव मूवमेंट को अपने साथ लेके। और क्या आपको लग रहा है कि ये 45 आउट ऑफ 48 जो टारगेट लगा है, और जिस प्रकार से अमित शाह आके बहुत सारे मीटिंग यहां पर लिए, कोऑपरेटिव सेक्टर में पूरे शुगर मिल्स को रिवाइव करेंगे, अलग अलग चीज को रिवाइव करेंगे, बहुत पैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट, हर्षवर्धन पाटिल भी बोल रहा था कि बहुत बढ़िया स्कीम है अमित शाह ने ले। तो सर कैसे कारखानी साहब देखते हो, क्या देव सफल होंगे 45 आउट ऑफ 48 लाने में? बिकॉज 45 यहां से नहीं मिला तो बहुत तकलीफ हो जाएगा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए। देखो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में मैं क्या बोलूं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस लेवल इतना बड़ा है कि वो टेक्नोलॉजी के बारे में भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, हिस्ट्री के बारे में भी वो कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। जब भी वो रडार के बारे में बात करते हैं तो क्लाउड आने के बाद में रडार कोई भी फाइटर प्लेन को ट्रेस नहीं कर सकता, इतना बड़ा उनका कॉन्फिडेंस लेवल है।
गटर के गैस की वजह से वो लोग चाय बनाने का कॉन्फिडेंस लेवल है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत बड़ा है। इसके लिए वो तो 48 आउट ऑफ 48 बोलेंगे तो भी वो कॉन्फिडेंस लेवल तो देश के सामने वो रख सकते हैं, महाराष्ट्र के सामने रख सकते हैं। उनका बोलने का और एक्चुअल करने का इसमें बहुत अंतर है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना था कि हर एमपी एक एक गांव लेगा और हमारे 500 एमपी 500 देहात को सुधार के एक स्मार्ट देहात बनाएगा। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना था कि हम लोग 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। उनका अभी कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा है कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन वो लोग मॉडर्न करना चाहते हैं। वो तो कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत ज्यादा है, लेकिन असल में क्या होता है ये देश की जनता जान रही है। असल में किसान लोग मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक एक स्कूल का कंडीशन इतना देश में खराब है। कम से कम महाराष्ट्र कर्नाटक जैसे स्टेट में और केरल स्टेट में ये स्कूल का कंडीशन अच्छा है, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार और ये सब जगह पे ये स्कूल का कंडीशन इतना खराब है, किसान का कंडीशन इतना खराब है, इंडस्ट्री का कंडीशन खराब है, तो उनको कॉन्फिडेंस लेवल दिखाने के लिए क्या जाता है। जी, लेकिन ये बताएं सर, ये तो आपने बात करी जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, जहां तक के देवेंद्र फडणवीस जी का प्रश्न है, उनका भविष्य क्या है सर? मतलब वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, वो तो बेचारे फंस गए, जैसा आपने कहा उनका सैंडविच बन गया। एक तरफ अजीत दादा पवार, दूसरी तरफ एकनाथ साहब, और तीसरी तरफ 103 बीजेपी के एमएलए, सब नाराज। वो कहते हैं कि यार हम 103 हम लोग क्या कर रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं क्या? मतलब ये अब एनसीपी के जो लोग आए 9 मंत्रालय इनको दे दिए, और वो जो एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग आए हुए हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारा क्या 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 देखते हैं सर चिंतामणि खारकने साहब, क्या करेंगे फडणवीस साहब इसको लेकर के? देखो टू बी वेरी फ्रैंक जी, हर पार्टी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं जी, बीजेपी के पास भी बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छे लोग थे। हमारी सुषमा स्वराज जैसी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो थी, जी, उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस का जो मॉडिफिकेशन किया, आपको मालूम है, आपको हर एक आदमी को मालूम है, पासपोर्ट निकालने का बोलेगा तो बहुत जिक्र का काम था। इट वॉज ए टीडियस जॉब, यस इट वॉज। लेकिन पासपोर्ट का इतना इजी कर दिया कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और ऑनलाइन सब काम और बिना झंझट पासपोर्ट आपके घर में आ जाता है। ये सब सुषमा स्वराज ने किया है। ऐसे अच्छे लोग बीजेपी में थे, लेकिन वो सब अच्छे लोगों को एक साइड में किनारे करके ये आदमी ने, अभी देखो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो नरेंद्र मोदी। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, तो नरेंद्र मोदी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, तो नरेंद्र मोदी। बाकी कोई मिनिस्टर का नाम ही नहीं हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे इनॉग्रेशन करने का और हर चीज का क्रेडिट लेने का काम ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। इसके लिए अभी देश नहीं, बीजेपी के लोग भी उनके ऊपर नाराज हो गए हैं। जो आदमी पार्टी का काम करता है उसको अपने आप के आपके ऊपर थोड़ा विश्वास रहता है, और मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरा भी नाम बढ़ेगा, मुझे भी फेम मिलेगा, मैं भी अच्छा काम करने वाला आदमी करके हिस्ट्री में मेरा नाम आएगा, ऐसे सब लोग सोचते हैं। और ये नैसर्गिक है, ये नेचुरल है। लेकिन उनके पार्टी में काम कोई भी करे, नाम सिर्फ मोदी जी का ये चल रहा है। 5 साल नहीं, अगले 10 साल भी, अगले 5 साल भी चल रहा है। इसके लिए अगर मोदी जी आ जाएंगे तो हम लोग वैनिश हो जाएंगे, हमको कोई याद नहीं रखेगा, हमारा नाम मिट जाएगा, ऐसी फिक्र सबको है करके सब एमपी नाराज है। तो आपके मुताबिक सर महाराष्ट्र में क्या होने वाला है ये तो बता दें, क्या लगता है आपको? देखो, ये मीडिया कुछ भी करे और इंटरनल पॉलिटिक्स कुछ भी होने दो जी, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत जोर से मतदान होगा। और भारतीय जनता पार्टी के, मुझे नहीं लगता है 10-12 के ऊपर उनके एमपी, जो 10-12 एमपी जो मैं बोल रहा ना, उन्होंने सचमुच अच्छा काम किया है।
जो एमएलए उनके चुन के आएंगे महाराष्ट्र स्टेट में, उनका कैरेक्टर, उनका बिहेवियर, उनका इंटेलिजेंस और उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, और उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको लोग अच्छा आदमी करके पहचानते हैं, करके वो लोग शायद चुन के आ सकते हैं। बाकी लोगों का चारित्र एनसीपी से आ गए, वो शिंदे गुट से आ गए, ऐसे लोग आ गए, उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम है, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप है। ये लोग लोगों को पसंद नहीं आएंगे और लोग उनको बाजू में किनारे कर देंगे। करण साहब, आदित्य ठाकरे जी नासिक में थे, उन्होंने कहा कि रोड्स आर वेरी बैड, नासिक के जो एक्सप्रेसवे इट इज वेरी बैड, पूरे पॉटहोल्स है एंड गवर्नमेंट हैज टू लुक सीरियसली अबाउट इट, आदित्य ठाकरे जी ने कहा। और मगर 2 दिन पहले राज ठाकरे जी ने भी पूरे मुंबई गोवा एक्सप्रेस हाईवे का आंदोलन शुरू कर दिया था। करीबन 17-18 जगह पे मनसे के कार्यकर्ता ने कहीं पर टोल नाका तोड़े, कॉन्ट्रैक्टर के गाड़ी जेसीबी मशीन तोड़े, कोई ऑफिस तोड़ दिया। तो क्या आपको लगता है ये जो संघर्ष चल रहा है, यूनाइटेड रहेंगे तो अच्छा होगा, बंटवाए मींस दोनों साथ में करेंगे, कि कैन राज ठाकरे जी टेक ऑन उद्धव ठाकरे जी वोट्स, बिकॉज संघर्ष अभी मनसे की तरफ से भी एकदम ग्रास रूट लेवल पे बहुत मजबूती से मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में चालू है। हाउ डू यू आर अ वेरी ट्रस्टेड लॉयल ओल्ड शिव सैनिक जो बाला साहब ठाकरे जी साहब के साथ भी थे, तो आपको इस चीज को कैसे, क्या आपको लग रहा है कि वोट का बंटवारा होगा, नहीं होगा? हाउ डू यू स्टडी दैट? आपका स्टडी क्या है सर कालकानी साहब? देखो, भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि वोट का बंटवारा हो जाए। उसके लिए उनके पास फॉर्मूला 44 रहता है। वो खांसी के लिए फॉर्मूला 44 बाजार में मिलता है ना, वैसा उनके पास एक फॉर्मूला 44 मिल रहता है। वो फॉर्मूला 44 को अपना के वो लोग जाति में झगड़ा, धर्म में झगड़ा, पार्टी में झगड़ा, उच्च नीच, पार्टी में इसको अपनाओ उसको छोड़ दो, इसको अपनाओ। कभी राज साहब के घर में वो लोग जाते थे और उनके साथ में बड़ी बड़ी बात करते थे। उनको ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ में काम करेगी, लेकिन फिर बाद में उनको बाजू में छोड़ देते थे। मतलब किसी को पकड़ना, किसी को छोड़ना, ऐसा खेल जो रोड के ऊपर खेल चलता है ना डोंबारी का, वैसा खेल वो खेलते थे। लेकिन जनता ज्यादा टाइम ये सब खेल नहीं देख सकती, और हर राज्य में हर नेता को अभी मालूम पड़ गया है कि बीजेपी हमारे साथ में बदमाशी कर रही है और बीजेपी हमको खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए हर आदमी को एक साथ में जुड़ना पड़ेगा। अपना वैयक्तिक स्वार्थ, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा बाजू में रखना पड़ेगा और एक साथ में आके बीजेपी को हराना पड़ेगा, क्योंकि उनका अस्तित्व बीजेपी को हराने के बाद में ही साबित हो सकता है। नहीं तो वो लोग अस्तित्वहीन हो जाएंगे। जी कारखाने साहब, दैट्स जस्ट अबाउट इट। चलते चलते ये भी बता दें, आपके मुताबिक जो इंडिया अलायंस है, क्या वो सक्षम है लोकसभा 2024 जीतने में? ये इंडिया अलायंस क्यों बना? इंडिया अलायंस इसके लिए बना कि भारतीय जनता पार्टी और स्पेशली मोदी जी का काम करने का तरीका हर एक स्टेट के पार्टी लीडर को बहुत तकलीफ वाला लगा। उधर दिल्ली में केजरीवाल नाराज, उधर ममता बनर्जी नाराज, हर स्टेट में हर स्टेट का चीफ नाराज था और नाराज है, और इसके लिए वो भी उनके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, लड़ो और मरो, लेकिन लड़ो या जंग जीतो, ये दोनों में से उनको जो सही लगेगा वो करने के लिए वो सब तैयार है। जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन ये विदेश से बीजेपी का जो विचार है, मैं बीजेपी को उखाड़ दो बोलेगा तो बीजेपी के कोई आदमी को उखाड़ दो ऐसा नहीं कहता हूं मैं। बीजेपी का जो विचार है, ये जो विचार है, ये विचार उखाड़ने के लिए सब लोग एक साथ आए हैं और सब लोग एक साथ रहेंगे। मैं तो कहता हूं उनको रहना ही पड़ेगा, नहीं तो उनका अस्तित्व
जैसे गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया, वैसा हर पार्टी का अस्तित्व खत्म कर हो सकता है। यहाँ पे महाराष्ट्र में शिवसेना का अस्तित्व भी खत्म करने का उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन 56 ईयर से शिवसेना चल रही है और हर एक आदमी, अभी मेरे जैसा बूढ़ा आदमी भी, मेरे जैसा सीनियर सिटीजन भी पार्टी का काम करने के लिए घर के बाहर निकल गया। वो इसके लिए निकल गया, अगर हम घर के बाहर नहीं निकलेंगे तो मैं जो पार्टी के ऊपर इतना सालों से प्यार करता था, पार्टी का काम करता था, वो पार्टी हमारी वैनिश हो जाएगी। अस्तित्व की लड़ाई है करके हम लोग बाहर निकले हैं, किसी को चुन के देने के लिए और किसी की चापलूसी करने के लिए हम लोग नहीं बाहर निकले हैं। अगर हम लोग बाहर अभी निकलेंगे नहीं ये उम्र में, तो ये हमारे पक्ष के लिए, हमारे विचार के लिए बहुत हानिकारक होगा। इसके लिए हम लोग बाहर निकले हैं और बहुत सारे शिव सैनिक यही सोच से चल रहे हैं। राइट, थैंक यू सो मच सर। कारखाने साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जबरदस्त, बहुत बहुत ही मजा आता है आपसे बात करके, दिल खुश हो जाता है बिल्कुल। आत्मा जो है वो तृप्त हो जाती है आपसे बात करके। नमस्कार सर, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। That was nice, Pradeep ji. बिल्कुल सर। When he Fantastic. says, when a senior citizen like me is forced to step out of the house to save the party that was founded at the time when he was a very young man, you can well understand what's going on Yes. in the minds of the people of Maharashtra. Now, the BJP really and truly has to wake up. My point about the BJP is that the BJP seems to be living in La La Land, very frankly speaking. They don't seem to realize the kind of anger, resentment and frustration that people have. Right! You have repealed Article 370. Wonderful. राम मंदिर आपने बनवाया है, जबरदस्त। अरे यार वो 1150 रुपए का जो गैस सिलेंडर है उसका क्या? जो टमाटर 200 रुपए में बिक रहे हैं उनका क्या? जो तूर की दाल है प्रदीप जी आज की तारीख में 150 रुपए की है, that too very bad quality dal by the way. The actual dal you're getting for about 200. Yes. I mean, this is terrible. Right, that's just about it from both Pradeep ji and myself, and we'll of course take a few comments. आप अपने कमेंट जरूर भेजें and do subscribe to the channel. आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें and let's take a look at some of the comments which have come in. Hello Rahul, goodbye Modi. Who's this? Moa Chanki. All right, that's a new one. Well, this could be used as a slogan by the Congress. Yes. Hello Rahul, goodbye Modi. Oh God. Sukh Parihar. Views shared on this channel do not reflect reality in the political landscape of this nation. Right. Yes, sir. Sukh Parihar. Thank you for telling us, sir, and thank you for opening our eyes. निजामुद्दीन रईन, आपको तो मंत्री होना चाहिए, ईमानदार बोर्ड नेताजी हैं। जी, इमरान खान साहब लिखते हैं, मैं इमरान खान JK3ID। जय हो कांग्रेस, अमीन मुगल 4240। ये निजामुद्दीन रईन साहब के ऊपर बड़े रिस्पॉन्स आता है, ऐसा होता है। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है इनकी। ये रेहान बिजले साहब हैं, रेहान बिजले 9783। पॉलिटिक्स में कभी कभी लॉयल्टी को आगे जाने का मौका नहीं मिलता। जो बाहर से आते हैं, आ जाते हैं, हमेशा आगे दिखते हैं। अपना अच्छा काम जारी रखेंगे अपने देश को बचाने के लिए। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड वी विल, दैट्स व्हाट ही सेज। But I tell you what, Nizam spoke very well yesterday. He really truly spoke very well. Now, Nizam sir, आप सही कह रहे हैं। कल्पना इंडिया जी बोल रही हैं। Right. That's just about it as far as we are concerned. And do keep sending in your comments. We love to read what you have to say, irrespective of the way you say it or what you say.
Well, that's just about it on Nation Now. Nation Now में आज सिर्फ इतना ही. And even though everybody says that it's going to be very difficult for Mr. Modi, maybe, but I still don't see Mr. Modi losing 2024, very frankly speaking. That's my opinion, of course. I may be wrong, but I don't think so. Not as yet, because the opposition still hasn't come out with a great alternative model. The BJP's model, everybody knows. The opposition's model cannot be just that the BJP's model is bad. What is your model? Unless and until, Pradeep ji, they come out with something of their own, which is far better than what the BJP has to offer, I don't think Mr. Modi has too much to worry about. Of course, he has something to worry about in the sense that he may not cross 303, but he'll be back. You don't know worry. Things are still. He might even get 350 if we get a part of POK with us. Exactly. Pakistan occupied Kashmir अगर आ गया और जो हम लोग बात कर रहे थे अभी अभिषेक मिश्रा जी से कि डेप्सैंग प्लेन्स और डेमचौक वो जो हॉट स्प्रिंग्स के पास जो जगह है बोगरा नाला जिसको बोलते हैं वहां से अगर चाइनीज हट गए because they pushed us out, they put their tents over there. 36 पॉइंट्स हैं जहां पर अभी हम लोग नहीं जा सकते. अगर वो पीछे हट गए, that will be a huge victory for Mr. Modi. That will be fantastic if we are actually able to do that, and that will be really and truly lovely. If status quo ante, as it prevailed before April 2019, that is before Colonel Babu was murdered and brutally murdered, is restored, that would be really something. Well, that's just about it. आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram.